So we'll talk about Lagnadi and the Chandradhi yogas. Lagnadi means ki they are fortifying the Lagna. Lagna is getting strong. And Chandradhi means ki this yoga is fortifying the Lagna, moon. It means the moon is getting strong. And you know what we want? We want only these two positions to be very strong. Lagna should be strong and the moon should be strong, because Lagna is your capability and the potential, your passion, your aptitude, and moon is your mind. If you have enough mental strength, you can face any eventuality, any adversity in the life. So these two planets, Lagna and the moon, should be strong. So whenever there is any yoga which fortifies either the Lagna or moon, we call them Lagnadhi or the Chandradhi yoga. तो ये बनता कैसे है कि when all benefic planets means Mercury, Jupiter and Venus, if they are all placed in 6th, 7th, 8th position from either Lagna or the moon, then this yoga is formed. So how they are placed, let just tell you. जैसे ये लग्न है यहाँ पर, this is the Lagna, and 6th, 7th, 8th houses are these houses. So when all the benefic planets, Mercury, Venus and Jupiter, they are placed in these houses, we may think that this is a bad position of these planets. But all these planets, they strengthen the Lagna, they make the Lagna very strong. क्योंकि जो भी planet यहाँ पर होगा 7th house में, it will have direct aspect on the Lagna. So Lagna को strong किया. If there is any planet in 6th house, it will have an aspect on the 12th house, which is again the associated with the Lagna only, or it's making the Lagna strong. ऐसे ही, if there is any planet, benefic planet here, so it will have an aspect on the 2nd house. So your Lagna will be between all malefic planet, or will be associated with all benefic planets. So in that case, the Lagna will become very strong, and to enjoy the life or to see any other house. Suppose you want to talk about profession. For profession, Lagna plays a very, very important role. Yeah, unless Lagna is strong, you cannot do well in the profession, because Lagna is ultimate your capability and potential, your passion and everything actually. तो लग्न का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कहते हैं कि अगर लग्न आपका स्ट्रांग नहीं है और बाकी हाउस कितने भी स्ट्रांग हो, यू कैन नॉट एंजॉय द लाइफ. और लग्न अगर स्ट्रांग है और बाकी हाउस कितने भी वीक हो, you can sail through the life comfortably. There won't be any problem, because you will be able to face all the problem. You will be able to solve any problem that comes across. ऐसे ही moon है. Moon is your mind actually, your mental faculty. If you're mentally very strong, then you can face any eventuality in the life. तो ये दोनों चीजें बहुत strong होना चाहिए, और इसीलिए इस योग की जो importance है बहुत ज्यादा हो जाती है कि जब तीनों बेनिफिक प्लैनेट मून या लग्न से 6th, 7th, 8th पोजीशन में होते हैं, तब ये योग बनता है. आई कैन शो यू नंबर ऑफ एग्जांपल्स. सर एक क्वेश्चन है जी. अगर बेनिफिक्स तो हैं ही 6, 7, 8 में, सपोज बेनिफिक्स भी हैं, तब भी ये योग माना जाएगा या वो? हाँ, योग माना जाएगा, बट अगर ज्यादा मेलेफिक का इन्फ्लुएंस होगा तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा. हम लोग डिस्कस करेंगे कि योग जो है उसके रिजल्ट बहुत वेरी करते हैं. ऐसा नहीं है कि हर रिजल्ट, योगा के रिजल्ट सेम होते हैं. दे हैव वाइड वेरिएशन एक्चुअली. तो किस तरह से वेरी करते हैं, दैट वी विल डिस्कस एक्चुअली. बट जी सर. सर एक क्वेश्चन और है, अगर सपोज तीनों की जगह 2 बेनिफिक्स हो 6, 7, 8 में, तब नहीं बनेगा ये योग. तब नहीं बनता. नहीं. You see here, all these 3 benefic planets are placed here: Mercury, Venus and Jupiter. So this should be either in any particular house, but all should be in these houses only. किसी भी तरह से हो, अलग अलग भी बैठे हों, इकट्ठे बैठे हों, बट इन तीनों हाउसेस में ही होने चाहिए. तो अगर ये तीनों हाउसेस में प्लेस्ड हैं, तो all are having an aspect on
the second house. So they are making the lagna very strong. तो इसको हम कहेंगे चंद्रादि योग, सॉरी लग्नादि योग, कि लग्न को जो है बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है, लग्न जो है बहुत स्ट्रांग हो रहा है. तो लग्न से या मून से जब भी 6, 7, 8 हाउसेस में सारे बेनिफिक प्लैनेट होंगे, तब हम कहेंगे कि ये लग्नादि या चंद्रादि योग बन रहा है. एंड दीज आर वेरी वेरी पावरफुल योगास, क्योंकि द योगा दैट मेक्स द लग्ना और द मून वेरी स्ट्रांग, it has a very special significance actually. फिर एक there's one yoga known as Amla Yoga. Amla Yoga is a very simple yoga. It's connected with the profession only, and it says that when there is any benefic planet, either from the Lagna or the moon, if there is any benefic planet, either from the Lagna or the moon, then this yoga is formed. And basically, why we say, because it makes the 10th house or the house of profession very strong. And if this yoga is there, then naturally you enjoy the fame, reputation, prosperity, and you have a spotless character also, because the 10th house becomes a benefic house. Uske baad, there are some combinations of different planets. And once you understand the nature of these planets, then it will be very simple to infer the result of these yogas also. So one very important combination of Moon and Mars. अगर मून और मार्स आपके हॉरोस्कोप में इकट्ठे कंजंक्ट हैं, तो एक योग बनता है जिसको कि हम चंद्र मंगल योग बोलते हैं, और we call it a Lakshmi yoga also. Whenever there is an association of Moon and Mars. Now you will think the simple association of Mars, why this Lakshmi has come into picture? What Lakshmi will have a role in this yoga? Moon is your mind. Moon is your mind. And what Mars does? Mars is a planet of energy. It adds energy to the mind. So once the energy is added to the mind, your mind will get activated. Your mind will start acting. And we know that hardly we use 10% of our mental capacity throughout the life. And if luckily we have a combination of Moon and Mars, so it will always try to activate mind more and more. It means we will be able to use more mental faculty. And suppose you are able to increase from 10 to 15 or 20%, you can do wonders in the life. And same results are there. Whenever there is a combination of Moon and Mars in your horoscope, you get some skill which is unparalleled, which is not there with the other people. And once you have that type of skill, naturally, where the Lakshmi will go, there will be no dearth of money. Money will always be with you. इसीलिए कहा कि जब भी चंद्र मंगल का योग बनता है किसी भी हॉरोस्कोप में, उस व्यक्ति के पास से लक्ष्मी अपना कभी निवास स्थान नहीं छोड़ती. और सारावली में एक श्लोक लिखा गया बहुत अच्छा, उसमें कहा कि चंद्रेण मंगलो युक्तो जन्म कालेन यदा भवेत ता जातस्य गेहम तु लक्ष्मी नेव विमुष्यते. कि जिन जातक के चंद्र और मंगल का योग होता है जन्म के समय, उन जातक के घर से लक्ष्मी अपना कभी निवास स्थान नहीं छोड़ती. वो इसलिए नहीं छोड़ती बिकॉज यू हैव सम अनपैरेलल्ड स्किल, बिकॉज मार्स always provides energy to the mind and your mind gets activated and you develop some unparalleled skill, and which is the cause why the Lakshmi will never leave you actually. और इसी योग को मैंने कहा कि योग के रिजल्ट बिल्कुल बहुत अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट. एक योग कभी लगेगा आपको बहुत पॉजिटिव है और वो योग कभी लगेगा बहुत नेगेटिव भी है. वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में उन प्लैनेट की पोजीशन है. तो ये जो लिखा, जो श्लोक मैंने आपको सुनाया, दिस इज रिटन इन वन ऑफ द वेरी ओल्ड एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट जिसको हम सारावली कहते हैं. और देयर इज अनदर एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट व्हिच इज बृहत जातक रिटन बाय बरहामीर. उसमें क्या लिखा है इसके बारे में? उसमें लिखा कि जिन लोगों के चंद्र मंगल का युति होती है, कंजंक्शन होता है,
वो लोग मॉरली इतने लो स्टैंडर्ड के होते हैं कि दे कैन गो टू एनी लेवल एज फार एज द मॉरलिटी इज कंसर्न। अब दो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, एक ने कहा बहुत पॉजिटिव है और एक ने कहा बहुत नेगेटिव है। Why they have written like this? Both are right. Both are right actually, because both are very learned astrologers. Why they have said this thing? Suppose your mind is already malefic. Moon is malefic planet in your birth chart, and Mars is also malefic planet. Then Mars will provide the energy to the mind. Mind is already malefic. Moon is a malefic planet. What will happen? Your mind will act in place of being constructive. It will become destructive. It will become negative in place of being positive. और जितने भी जो इस टाइप के लोग होते हैं जो उल्टे सीधे काम करते हैं, हैकर्स हैं, टेररिस्ट हैं, या जो भी लोग हैं, they have this combination, but Moon and Mars are malefic. And when Moon and Mars are malefic, your mind goes in the negative direction. It goes for destruction in place of construction. But both are intelligent. Both have wonderful mind actually. Their mind capability increases. But only thing is in place of going into the positive direction, they are going into the negative direction. तो इसीलिए उसने कहा बृहद जातक ने कि उन्होंने देखा होगा ऐसे हॉरोस्कोप जहाँ मून और मार्स का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा हॉरोस्कोप में. And if you see horoscope of such persons, so naturally they are all these type of people only. But one thing is definite कि दोनों ही के घर से लक्ष्मी स्थान अपना निवास स्थान नहीं छोड़ेगी, क्योंकि दोनों को ही पैसा मिलेगा. आप मतलब पॉजिटिव काम कर रहे हो और नेगेटिव काम कर रहे हो. इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए कभी भी जो है ऐसे व्यक्तियों के साथ घर से लक्ष्मी अपना निवास स्थान नहीं छोड़ती. बट ये सारा कुछ योग के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है. और मैंने कहा कि किसी भी योग के रिजल्ट बहुत वेरी कर सकते हैं. कभी कभी बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कभी कभी बहुत नेगेटिव भी हो सकते हैं. और पॉजिटिव में भी इट मे वेरी फ्रॉम 10 to 100% depending on the position of planets involved, depending on the association of other planets, depending on the position in which the house the yoga takes place. तो ऐसा नहीं कि कोई भी अगर आप योग देखते हैं तो results will be same. Results will have a wide variation. फिर एक योग बनता है जैसे ये मून एंड मार्स कहा हमने. So similarly there is another yoga which is known as a wish yoga, and this is because of the combination of Moon and Saturn. Whenever there is a conjunction of Moon and Saturn, then this wish yoga is formed. सर इसमें मून और सैटर्न को सेम हाउस में होना चाहिए या एस्पेक्ट भी हो सकता है? No, they have to be together. Okay. They have to. सकट योगा जो है ये तो ये नेगेटिव योगा. हाँ, अभी I will discuss the Sakat yoga also, but before I am discussing the simple yogas, we will come to that then more difficult yogas actually. So what is wish yoga? हमने मून एंड मार्स को तो कहा लक्ष्मी है, और मून और सैटर्न को हम विश योग कह रहे हैं. क्यों? सर एक मिनट, एक और क्वेश्चन है. अगर मून सन साइन है, मून अगर सन साइन लॉर्ड है और उसमें सैटर्न बैठा हुआ है तो वो भी विश योग में काउंट होगा? नहीं, समझा नहीं मैं. मून अगर सन साइन का जो लॉर्ड है अगर वो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नो, इट्स अ सिंपल थिंग. द मून एंड मार्स शुड हैव कंजंक्शन, दैट्स ऑल. किसी का भी लॉर्ड हो, कहीं का भी हाउस का लॉर्ड हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, कंजंक्शन की जहां हम बात कर रहे हैं वहां उसके सनसाइन लॉर्ड में अगर सैटर्न बैठा हुआ है तो वो उसको हम विश योग नहीं बोलेंगे. नहीं, मून एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. डायरेक्टली एज प्लैनेट्स या एज प्लैनेट्स? वी आर टॉकिंग ऑफ एज प्लैनेट्स ओनली, not as the lord of some certain houses. No, lord of sun sign या किसी no sun sign. nothing to do with that. There has to be simple conjunction of two planets. Okay. Sir, even if it is in Lagna? Anywhere. Okay. It's irrespective of the house, and I'm talking irrespective of the strength of the moon and the Saturn. Why we have called this as a wish yoga? जब हमने moon and Mars को तो कहा लक्ष्मी योग हो गया, बहुत अच्छा योग हो गया. But why this moon and Saturn becomes a wish yoga?
What is the One difference? question. Wheresoever we are using the word combination, so we should assume that combination here means the both planets should be in same house. देखिए, again, I think there is some confusion. When we say conjunction, it means the degree wise they should be together. Degree wise they should be together. Suppose in the same house, one planet is of 1 degree, another planet is of 29 degree. So difference in the two planet is 28 degree. And when the difference is 28 degree, it may not have any influence on each other. And suppose in another case, one planet is at यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है ना, तो मैंने 2 पेड़ देखे मार्केट के सामने, पेड़ बड़ा हो गया, उसमें वो लगा हुआ है टी कार्ड सीमेंटेड वाला. kindly unmute your audio actually. So suppose in another case, a planet is at 28 degree in one house and another planet is at 1 degree in another house. Then degree wise they are conjunct, and what we're talking is not the house. They should be together degree wise. So they may be in the same house, but they may not be conjunct because of the difference in the degrees. And they may be in the different houses, but they may be conjunct because they are very near to the degrees, or in the zodiac they are together. So basically neighboring house में अगर होगा तब भी उसको consider कर सकते Naturally, हैं. देखिए influence तो जब भी आएगा जब वो आसपास हैं zodiac में. House तो एक division है, but ultimately what we are concerned with the position of the planet in the zodiac. Zodiac में इकट्ठे हैं तो house किसी house में उससे क्या फर्क पड़ता है? जब भी तो इन्फ्लुएंस होगा. अगर जोडियक में इकट्ठे नहीं है तो एक दूसरे का इन्फ्लुएंस कैसे होगा? तो इन्फ्लुएंस होने के लिए पहली चीज तो यह है कि दे हैव टू बी टुगेदर डिग्री वाइज. अभी देखिए किसी का मान लीजिए कि एक हाउस में है मून और सैटर्न, एक का 2 डिग्री है, एक का 28-29 डिग्री है, तो मून और सैटर्न का क्या इफेक्ट होगा? कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा. मून मार्स का भी अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो क्या उसका इफेक्ट होगा? नहीं, वो सफिशिएंट डिस्टेंस है, उसके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस आएगा ही नहीं. बट अलग अलग हाउस हम मानेंगे that it's closed? पार्डन, कितनी डिग्री तक हम मानेंगे कि ये पास में है? 5-6 डिग्री, 5-6 डिग्रीज. ओके. जितना ही पास होगा उतना ही इन्फ्लुएंस उन दोनों का आपस में होगा. अदरवाइज अगर दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे ही नहीं वो प्लैनेट. तो 5-6 डिग्री का अगर डिफरेंस होगा तो एक ही हाउस में आ गए ना वो फिर? नॉट नेसेसरीली, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. अच्छा. जैसे कि मान लीजिए, लेट मी गिव, क्योंकि 30 डिग्री का एक सनसाइन है, अगर 5-6 डिग्री का डिफरेंस ही है तो वो एक ही सनसाइन के अंदर आ गए. नहीं ऐसा नहीं. देखिए नक्षत्र हो सकता है, नक्षत्र एक ही अलग. आई विल गिव एन एग्जांपल कि इसमें मून की डिग्री कितनी है यहाँ पर? 27 डिग्री. राहु की कितनी है? 2 डिग्री. 2 डिग्री है तो राहु. कितना डिफरेंस हो गया दोनों में? 18 डिग्री. 25. 25. And when there is a difference of 25 degrees, there is no influence of Rahu on the moon. There is no influence of Rahu on the moon. Suppose moon was here in this sign at 28 degree, 10 sign, and Rahu was here at 2 degree. Then how much was the difference? 4 डिग्री का. 4 डिग्री. तो अलग अलग हाउस में हैं पर बहुत पास हैं, और उसी को हमें देखना है. दे हैव टू बी टुगेदर डिग्री वाइज, नॉट नेसेसरीली कि एक ही हाउस में हो. तो एक हाउस में भी होके इतना अंतर हो गया इसमें, तो फिर क्या उसका इन्फ्लुएंस होगा? कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी. कोई भी हम योग की हम बात कर रहे हैं, कंजंक्शन मींस कि दे हैव टू बी टुगेदर. अगर इतना डिफरेंस है तो क्या उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा? सर एस्पेक्ट से भी तो इन्फ्लुएंस होता है ना? हाँ जी, सर एस्पेक्ट से भी तो इन्फ्लुएंस होता ही है. इन्फ्लुएंस होगा लेकिन योग नहीं बनेगा. Okay. Influence is something else. What we are talking is the yoga which entirely changes the complexion of the horoscope. Okay. सर मान सर लीजिए या तो हाँ जी, सेम हाउस में हो या एडजेसेंट हाउस में, और मतलब सेम हाउस में भी है तो सेम डिग्री वाइज जो है दोनों बिल्कुल पास पास होने चाहिए. ये आप ध्यान रखिए बस. सर मान लीजिए एक फर्स्ट हाउस में है, एक 7th हाउस में है, और हाँ. डिग्री सेम है, तो
वो एस्पेक्ट हो गया। हम यहाँ कंजंक्शन की बात कर रहे हैं कि नहीं, मान लीजिए एक फर्स्ट में एक फिफ्थ हाउस में है हाँ और डिग्री सेम है, हाँ, तो क्या हुआ ये? वो एस्पेक्ट होगा तो होगा, बट नॉट कंजंक्शन। जी, मतलब कंजंक्शन एडजेसेंट हाउसेस के बियॉन्ड तो सर डिग्री क्लोज हो ही नहीं सकती। नहीं, नेचुरली ये तो Right. एडजेसेंट हाउस होंगे या सेम हाउस होगा, राइट राइट राइट। और दूसरा हाउस तो हो नहीं सकता। बट व्हाट आई मीन कि दे मे बी इन द डिफरेंट हाउसेस बट दे मे बी टुगेदर आल्सो, और एक हाउस में होके भी अलग अलग है। तो जब भी हम योग की बात करते हैं कि वी हैव टू सी कि जो दोनों प्लैनेट की डिग्री में जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना क्लोज होगा उतना ही ज्यादा उसका उस हाउस के ऊपर इन्फ्लुएंस भी होगा। एनीवे, वी आर टॉकिंग अबाउट मून एंड सैटर्न, कि अगर मून और सैटर्न है तो विष योग कहा हमने कि वो विष योग क्यों होता है, उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा। एंड आई टोल्ड यू कि अनलेस यू नो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच प्लैनेट, ईच साइन, आपकी समझ में नहीं आएगा। आप you cannot be a good astrologer, but once you understand the basic characteristics of each sign and the planet, then astrology is just a child play. It's just a common sense, nothing to do. So moon and Saturn क्या है? What is moon? Moon is the Will make mind. person lazy. Negative thinking. Moon is a mind. Moon And is a Saturn is a controller planet of your which thoughts. puts pressure. Saturn is a planet which puts pressure. हम साढ़े साथी के बारे में जानते ही हैं कि जब भी शनि मून के पास आता है तो हमारा जो मेंटल टेंशन है बढ़ जाता है, क्योंकि मून जो है हमारा माइंड है और सैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेशर डालने की। तो जैसे ही मून और सैटर्न पास में आए तो अवर माइंड गोज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। अब क्वेश्चन ये है कि मून और सैटर्न इकट्ठे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। इट मीन्स योर बर्थ वॉज टेकिंग प्लेस व्हेन Saturn was transiting exactly over the moon, and this was the second phase of Sadasati, under which you have the maximum mental pressure. I'm not talking of the result, but I'm just talking of the personality of the person. And when Moon and Saturn, they were together at the time of birth, it means that becomes the permanent part of his personality. It becomes the permanent nature of that native. और नेचर क्या होगा कि दैट पर्सन इज ऑलवेज अंडर लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर। कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट हो, कितनी भी अच्छी सिचुएशन हो, सब लोग एंजॉय कर रहे हो, कितनी बड़ी पार्टी चल रही हो, लेकिन वो बेचारा कोने में बैठ के दुखी होता रहेगा। कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग या कुछ पेसिमिस्टिक कुछ ना कुछ टेंडेंसी चलती रहेंगी उसके दिमाग में। तो नेचर वाइज दे बिकम वेरी बैड एक्चुअली, मतलब नॉट बैड बट इट्स नॉट ए गुड थिंग एक्चुअली, कि ऑलवेज यू आर ए दुखी इंसान जैसे कहते हैं हम जो है। तो उसका उस टाइप का नेचर हो जाएगा कि कैसा भी एनवायरनमेंट हो, कैसी भी सिचुएशन हो, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसको मजा नहीं आ रहा उन चीजों में। वो तो कोने में जाके कहीं नेगेटिव कुछ ना कुछ सोच रहा है आदमी। तो उस टाइप का नेचर बन जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट कैसे होंगे। एक मान लीजिए कि माइंड आपका वीक है, मून इज ए वीक प्लैनेट, मेलेफिक प्लैनेट, लेट्स से इट्स अ मेलेफिक प्लैनेट, एंड देयर इज अ प्रेशर ऑफ सैटर्न, what will happen? It can lead to depression also. Right, the person will go under depression. वो और ज्यादा दुखी हो जाएगा। अंडर प्रेशर तो है ही है, लेकिन अगर मून मेलेफिक है तो और प्रेशर पड़ा तो और ज्यादा दुखी हो जाएगा। और अगर मून बहुत स्ट्रांग है, then you put a pressure, then what will happen? He'll sail through. He'll sail through. Not only मेंटली स्ट्रांग हो जाएगा सर, हैं? मतलब प्रॉब्लम्स को फेस करने में बहुत स्ट्रांग हो हाँ, जाएगा। he will do some He'll sail extraordinary work. जैसे बच्चे होते हैं कि नॉर्मल है, लेकिन जब ऐसे एग्जाम का प्रेशर पड़ता है तो सब कुछ याद हो जाता है उनको। माइंड स्टार्ट्स एक्टिंग। अगर माइंड आपका फर्टाइल है और प्रेशर पड़ा शनि का, तो आप कुछ ना कुछ एक नई चीज का याद करेंगे, कुछ इन्वेंशन करेंगे, कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, ना कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो साढ़े साथी की जिसकी हम बात करते हैं, उसमें मून और सैटर्न का एसोसिएशन है आपस में। पर ऐसे में अगर मार्स का भी इन्फ्लुएंस आ रहा हो तब भी इंसान इन्वेंटिव थिंकिंग रखेगा, कर पाएगा?
मून और मार्स से तो और फर्टाइल हो जाएगा। मार्स तो उसको और एक्टिवेट करेगा, एनर्जी देगा, और सैटर्न प्रेशर डालेगा। आपको क्या चाहिए? इससे अच्छी पोजीशन तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, दोनों Sir, चीजें हो गई। if moon is benefic but Saturn is malefic, then what kind of results it will give? उसका थोड़ा कम उसका फर्क पड़ेगा। अगर बट मून भी, अगर सैटर्न भी अगर स्ट्रांग है, अच्छा प्लैनेट है, देन ज्यादा एक माइंड एक्टिवेट होगा, ज्यादा अच्छा काम होगा। बट अगर सैटर्न कैसा भी हो, अगर माइंड बहुत अच्छा है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। कितना प्रेशर डालते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट एक्चुअली। तो यही चीज 7.5 के दौरान होती है। हम कहते हैं कि हम लोग बहुत डरते हैं 7.5 से, कि जब भी जो सैटर्न मून से एक घर पहले ट्रांजिट में आ जाता है, गोचर में आता है। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर मून यहाँ पर है 11 साइन में। आजकल सैटर्न कहाँ चल रहा है? आजकल सैटर्न की क्या पोजीशन? हाँ जी, Sorry, Capricorn में. कैप्रिकॉर्न साइन में। तो शनि यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न साइन में, तो मून से एक घर पहले आ गया जी। इसका मतलब 7.5 शुरू हो गई। 2.5 साल यहाँ पर रहा इस 10th साइन में, फिर 2.5 साल यहाँ रहेगा इस साइन में एग्जैक्टली ओवर द मून, एंड 2.5 साल यहाँ रहेगा नेक्स्ट हाउस टू द मून एक्चुअली। तो इस टोटल जो पीरियड होता है इसको हम 7.5 साल का पीरियड होता है, क्योंकि शनि जो है एक हाउस में 2.5 years रहता है, 2.5 साल। तो ये जो 7.5 साल का पीरियड हुआ इसको हम 7.5 कहेंगे, राइट। तो आजकल जैसे 10 नंबर में शनि चल रहा है, तो जिनका मून साइन 9 नंबर है उनका तो लास्ट फेज है 7.5। जिनका मून साइन ही 10 नंबर है उनका सेकंड फेज है 7.5 का, और जिनका मून साइन 11 है उनका 7.5 का फर्स्ट फेज है। इसका मतलब जो 3 जो राशियां वाले लोग हैं, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, जिनका ये मून साइन है, तीनों में से कोई भी, दे आर रनिंग द पीरियड ऑफ 7.5 नाउडेज। तो ये 7.5 साल का पीरियड। तो शनि जब पास में आया मून के, तो प्रेशर डालना शुरू किया माइंड के ऊपर। तो आप मेंटल प्रेशर में आ गए। आपने देखा कि चारों तरफ से सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा खासा एनवायरनमेंट चल रहा था, और सडनली क्या हुआ, सब लोगों का बिहेवियर बदल गया, या मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि टेंशन बढ़ गया एकदम से, जबकि सारी चीजें ठीक हैं, बट कुछ ना किसी कारण से जो है वो टेंशन बढ़ गया। तो दैट इज द obvious result of 7.5, because once we know the characteristics of the moon and the Saturn, तो ये बड़ा कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है कि 7.5 होगी तो मेंटल प्रेशर बढ़ेगा आपके पास, you will remain under lot of mental pressure। और दूसरा, जहां तक रिजल्ट की बात हुई, मैंने यही कहा कि अभी अगर मून वीक है तो नेचुरली 7.5 में भी डिसएस्ट्रस फॉर यू, इट मे गिव यू वेरी बैड रिजल्ट्स इफ मून इज ऑलरेडी वीक। बट अगर मून स्ट्रांग है किसी का, then why 7.5 will be bad? 7.5 will be very good for him or her। तो ये कहना कि 7.5 के रिजल्ट हमेशा खराब मिलते हैं, नो, इट्स नॉट करेक्ट। बट वन थिंग इज डेफिनेट कि the person remains under a lot of mental pressure during the period of 7.5। बट जहां तक रिजल्ट का सवाल होता है, वो रिजल्ट आपको मून और सैटर्न की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। If moon is fertile, mind is fertile, you get very good results of 7.5। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन हुआ तो आपकी जो एक इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी, कि आप एक दुखी इंसान की तरह बिहेव करते हैं हर जगह, यू वेरी पेसिमिस्टिक, यू ऑलवेज हैव नेगेटिव थॉट्स, और आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते अच्छी तरह से। तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ विष योग or the conjunction of moon and Saturn। Suppose in place of moon and Saturn there is a conjunction of moon and Rahu, what will happen? सर कुछ गलत काम करवाएगा, जो राहु की टेंडेंसी होती है, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज या शॉर्टकट सॉल्यूशंस निकलवाएगा। क्या होना चाहिए? It could give energy and power also। Rahu, the moon is strong। अगर मून स्ट्रांग है
तो वही मतलब अच्छा, let's forget the results actually. Results we are not talking. What will be the effect of this combination on the personality of a person? Confused. Right. Confident. Rahu always creates confusion. confused. So, and Moon is the mind. So it creates confusion in the mind. Very impulsive. You are always in a dilemma ki what we should do, whether I should do this thing or that thing. Very poor negative decision making. Such people cannot be good decision makers because they are always in doubt. They are always under confusion. राक्षसी प्रवृत्ति जैन साहब, राक्षसी प्रवृत्ति नहीं, ये तो सर का है, ये इसमें कहाँ ऐसे नहीं है तो मून और राहु, मून एंड हाँ। राहु। नहीं, जो जया जी कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं. What is moon? जी You have to understand actually. Unless you understand the basic things actually, आपको समझ में नहीं आएगा. What is moon? Moon is a liquid. लिक्विड, हाँ जी जो भी आप लिक्विड लेते हैं, that is represented by the moon. जी जी। और राहु क्या है? आपने कहा राक्षसी प्रवृत्ति ऐड कर देता है उसके अंदर. Alcoholic. राक्षसी प्रवृत्ति is कि you won't like to have a normal liquid. जी Pure liquid you don't want. जी जी You always want a liquid mixed with some poison. जी। पर आप तो teetotaler हैं सर. वही मैं बताने जा रहा हूँ ना आपको. That should be the basic nature. If given a chance, such people they have a temptation toward the hard drink. They become alcoholic, drunkard they may be. If given a chance. पर यहाँ पर And- आपका गैप देखा जाएगा ना. अभी आपका अभी moon I'm coming to that. तो ये एक टेंडेंसी हो गई. और देखिए, जो भी आप प्रिडिक्शन करें, हमेशा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके देश पात्र काल का ध्यान रखते हुए जब आप प्रिडिक्शन करिए. बट गिवन ए चांस दैट पर्सन विल ऑलवेज हैव अ टेम्पटेशन टुवर्ड दैट. दैट इज अ पार्ट ऑफ द नेचर कि अगर जैसे ही मौका मिलेगा तो डेफिनेटली ही विल गो फॉर दैट. और यहाँ आप देख रहे हैं कि मून एंड राहु का अभी तो बात हुई, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री. यस हाँ जी जी। राहु हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द मून. यस ओके। तो ये डिग्री आप देख लीजिए, क्योंकि ये इसीलिए लिखी जाती हैं. कंप्यूटर हॉरोस्कोप में सबसे पहले डिग्री ही लिखी जाती हैं, जिससे कि आप इस टाइप का कंफ्यूजन ना हो आपके अंदर कोई भी जो है. जैन सर, जब तक मुझे पता नहीं था ये आपकी जन्म पत्री है तो मैं डिग्री देख रही थी और सोच रही थी कितनी अच्छी डिग्रीज हैं, 11, 12, 11, 16 बहुत ही बढ़िया डिग्रीज है सारी ना. एंड यू नो दैट सैटर्न का जी। प्लेसमेंट आप क्या कहेंगे इस हॉरोस्कोप में? Superb. 15 डिग्री Give status. नहीं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सैटर्न? आप देखिए, वो मत करिए. लग्न साथ में है, लग्न के साथ में है. डोंट भाव गेट. वर्गोत्तम है, भाव वर्गोत्तम सारे डिविजनल चार्ट्स में लगन में. हाँ, सब में लग्न में बैठा हुआ है लगन सैटर्न. में बैठे हैं, सैटर्न में. D10 में भी हाँ। उसी में है, वर्गोत्तम हो पहले गया. तो आप ये देखिए कि लगन की डिग्री 15 डिग्री है और बुरी डिग्री सैटर्न की भी है करीब करीब. ऑलमोस्ट सैटर्न इज एट द सेम डिग्री. तो जितने भी आप डिविजनल चार्ट बनाएंगे, इट हैज टू बी इन द लग्न ओनली. आप देख भी रहे हैं कि ये लगन में, 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 सब लगन में ही है. एंड दिस इज सच ए चार्ट वेयर all 16 divisional charts, Saturn is placed in the ascendant. And Saturn becomes very powerful because it is Bhav Vargottam. And as I told you that it has an association of all the benefics also. Lagnadi Yog bhi banta hai. And this is the only time when I got everything in my life. And that was the beginning of my life. It started from the age, aap dekhiye isme. Saturn started 59 at the age of 7 years. 7 to 26 years. And by that time, I got everything in my life during this period. And you ask anybody, he will say Saturn is such a bad position is here. Because it is
पाप कतरी योग हम बोलते हैं कि दोनों तरफ उसके मेलिफिक प्लैनेट प्लेस्ड है, दोनों तरफ मेलिफिक प्लैनेट प्लेस्ड है. And I can tell you an incident. I was sitting with a publisher actually, Delhi mein. So somebody came from Allahabad, a very good astrologer, and he came to him for publication of his books actually. So just by chance, मुझे उसको पता नहीं था मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो उसने कहा अपना हॉरोस्कोप दिखाएंगे. मैंने चार्ट बनाया उसके बाद. कहता है कि ये तो किसी लेबर क्लास का हॉरोस्कोप है, ये तो बहुत गंदा हॉरोस्कोप है, इसकी कोई एजुकेशन नहीं हुई, इसके फादर नहीं होंगे, इसका ये नहीं होगा, इसका वो नहीं होगा. All negative thing is said actually. And he was not wrong, क्योंकि कोई भी अगर ये हॉरोस्कोप देखेगा, 6, 7, 6 3rd हाउस में सारे प्लैनेट प्लेस्ड हैं, 3rd हाउस में सारे प्लैनेट प्लेस्ड हैं, और सैटर्न जो है वो एफ्लिक्टेड है बिटवीन द मेलिफिक प्लैनेट्स. तो दैट इज वेरी बैड पोजीशन. और सैटर्न की दशा ही ऑपरेट हुई शुरू में, तो एवरीबॉडी विल से कि कोई एजुकेशन नहीं होगी, कुछ नहीं हुआ होगा. बट बताइए कि एजुकेशन क्यों हुई इस हॉरोस्कोप में? कैन एनीबॉडी टेल? ये तो सारे प्लैनेट 8th हाउस में हैं, तो एजुकेशन का तो सवाल है ही नहीं बिल्कुल भी. सर पहले तो वीनस 2nd हाउस को अपने घर को देख रहा है, बेसिक एजुकेशन का वो है. फिर जुपिटर जो है 4th हाउस को देख रहा है, मिडिल एजुकेशन वो हो गई अपने घर को. राइट, दैट इज द मेन पॉइंट कि जुपिटर इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन द 4th हाउस. जी. और जब भी कोई भी प्लैनेट अपने साइन को एस्पेक्ट करता है तो इट मेक्स ए राजयोग कंसर्निंग दैट हाउस. एंड दिस इज द हाउस ऑफ बेसिक एजुकेशन. जी. एंड हियर यू सी सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ ट्राइन placed in the quadrant. Lord of Trine placed in the quadrant. It makes a very good Raj Yoga actually. And some people may say it's a Lord of 6th house also. 6th house का Lord अगर लग्न में बैठेगा तो क्या करेगा? Malefic हो गया सर. मूल त्रिकोण is in trine. तो ये बीच से छुटकारा दिलाएगा, शत्रुओं से छुटकारा, एनिमीज से को डिफीट करेगा सर. रिपु रोग ऋण से आजादी दिलाएगा. आजादी दिलाएगा, बिल्कुल जिया जी ने ठीक कहा. उल्टा आप लोग सब उल्टा सोचेंगे कि छठे का लॉर्ड इसमें बैठ गया तो सब खराब करेगा, बट यहाँ से इसकी पोजीशन देखिए कौन सी है, अपने से 8th पोजीशन में चला गया. जी. 8th पोजीशन इज द एंड, लॉन्गेविटी. उसकी लॉन्गेविटी खत्म हो गई इन चीजों की. जो 6th हाउस के जो सिग्निफिकेशंस थे, नेगेटिव सिग्निफिकेशंस, एनिमीज हैं, डिसीजेस हैं, लिटिगेशन है, अपोनेंट्स हैं, उनको सबको खत्म कर दिया. तो दिस बिकम्स ए वेरी पावरफुल योगा, जो कि नॉर्मली लोग यही समझेंगे कि 6th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है तो खराब होगा. एंड अदरवाइज आल्सो द ब्यूटी इज कि सैटर्न इज इन द ascendant in all the 16 divisional charts. We did lot of research on this actually. Why this Saturn gave such a good results in spite of being so malefic. But in all bhav chart, it is in the lagna. So it became very powerful from that point of view. So anyway, so we were talking about Vish Yoga, then association of Moon and Rahu also. We'll discuss some other important yogas also. जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे कि योगा है, योगा के रिजल्ट्स जो हैं दे वाइडली वेरी, दे डिपेंड ऑन सो मेनी फैक्टर्स. एक ही योग होगा 2 व्यक्तियों के, लेकिन उसके रिजल्ट जो है बहुत अलग अलग होंगे. तो रिजल्ट जो है किसी भी योग के किन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट वी हैव टू सी एक्चुअली. तो फर्स्ट इज द हाउस और द भावा इन विच द योगा टेक्स प्लेस, या पहले उससे करेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट. जो भी प्लैनेट इन्वॉल्व है उस योगा में, उनकी स्ट्रेंथ क्या है. अगर मैंने कहा कि बुध आदित्य योग है, अगर वो सन की स्ट्रेंथ ही नहीं है, फादर की स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो वो क्या सिखाएगा. मरकरी की स्ट्रेंथ नहीं है तो वो बच्चा कैसे सीखेगा.
तो इंटेलिजेंस कहाँ से आएगा? तो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स इन्वॉल्व्ड, कौन से प्लैनेट हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द योगा, एनी योगा. सेकंड इज कि वेयर दिस योगा इज टेकिंग प्लेस, इन विच हाउस, दैट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मान लीजिए कि बुध आदित्य योग की हम बात करें, तो बुध आदित्य योग किस हाउस में बेस्ट होना चाहिए? 5वें घर में. 5वें घर में, बिकॉज दैट इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस एंड दिस योगा इज आल्सो ऑफ इंटेलिजेंस. तो अगर किसी के 5वें घर में है तो दैट इज अ वंडरफुल पोजीशन. किसी के 6th घर में है, 8th में है, 12th में है, तो इट बिकम्स अ वेरी वीक योगा. किसी का लग्न में है, बहुत अच्छा है, 10th हाउस में है, बहुत अच्छा है, बट 5वें घर में बेस्ट है. और अगर किसी भी खराब घर में हो रहा है, त्रिक हाउस में हो रहा है, तो नेचुरली वो खराब है. तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देश पात्र काल, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं. आप देखिए, एक टाइम में अगर 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक मान लीजिए कि बहुत गरीब व्यक्ति के यहाँ पैदा होता है, एक बहुत अमीर व्यक्ति के यहाँ पैदा होता है, एक ही टाइम है, दोनों के योग बिल्कुल सेम है, तो आप कहेंगे कि दोनों के रिजल्ट एक से होने चाहिए? नो. अगर गरीब आदमी है और मान लीजिए कि सन बहुत अच्छा प्लेस्ड है उसके हॉरोस्कोप में, तो वो अगर एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क बन जाएगा तो उसके लिए वो राजयोग हो गया. और एक ऑलरेडी एक अच्छी फैमिली का कोई व्यक्ति है, ऑलरेडी रिच आदमी है या बिलोंग टू द फैमिली ऑफ हाई स्टेटस, देन क्लर्क इज नॉट the result of that yoga. That will be something else. He may be an IAS officer. He may get some other very good status. Yoga is same. Planets are same. They are at the same degree, same house. But just the patra or the person involved has changed the result of that yoga. So ऐसा नहीं कि you have to take into account the person involved also. कि कौन व्यक्ति है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. तो अगर कोई धन योग भी है तो डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति है उसमें इन्वॉल्व, कौन है. तो ये देश पात्र काल का आपको हमेशा ध्यान रखना है. उसके हिसाब से भी जो आप प्रिडिक्शन करेंगे उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे. एक ही योग है और सब कुछ सेम है, एक ही जगह पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों के लिए राजयोग का अंतर बहुत ज्यादा हो गया. फिर है प्लेसमेंट ऑफ द डिस्पोजिटर्स ऑफ द प्लैनेट. जिस साइन में ये योग बन रहा है, जिस साइन में ये योग बन रहा है, उस साइन के लॉर्ड की क्या पोजीशन है आपके हॉरोस्कोप में. एंड डिस्पोजिटर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर एवरीथिंग. जब भी आप किसी हाउस को भी एग्जामिन करते हैं तो उस हाउस को के डिस्पोजिटर की पोजीशन हमेशा हैज ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन द रिजल्ट ऑफ दैट हाउस. और डिस्पोजिटर का मतलब होता है कि जिस हम साइन में, जिस हाउस में योग बन रहा है, उसमें जो साइन है, उस साइन के लॉर्ड की आपके हॉरोस्कोप में क्या पोजीशन है. फिर है कि प्लेसमेंट ऑफ द लॉर्ड ऑफ द कॉन्स्टेलेशन ऑफ द प्लैनेट्स इन्वॉल्व्ड. जो प्लैनेट जो योग बना रहे हैं वो किस नक्षत्रों में है, किन नक्षत्रों में है, उन नक्षत्रों के लॉर्ड की आपके हॉरोस्कोप में क्या पोजीशन है. तो रिजल्ट्स विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट आल्सो. फिर है रिलेशनशिप ऑफ द प्लैनेट इन्वॉल्व्ड. अब जो 2 प्लैनेट योग बना रहे हैं उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है. अगर 2 फ्रेंडली प्लैनेट अगर योग बना रहे हैं तो दे आर मोर कंफर्टेबल. और अगर 2 ही एनिमी प्लैनेट अगर योग बना रहे हैं तो देन द पोजीशन विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्चुअली. तो हमें ये भी देखना है कि जो इन्वॉल्व प्लैनेट हैं जिसकी वजह से योग बन रहा है, उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है. तो उसके ऊपर भी आपको रिजल्ट डिपेंड करेंगे आपके किसी भी योग के. और जो रिजल्ट मिलते हैं किसी भी योग के, दे आर बेसिकली व्हेन द दशा ऑफ दैट प्लैनेट, दशा ऑफ दोज प्लैनेट्स दे ऑपरेट एक्चुअली. जब दशा ऑपरेट करती है तभी ही आपको किसी भी प्लैनेट के रिजल्ट मिलते हैं. तो किसी भी योग के रिजल्ट
मिलने के लिए, जब उस प्लैनेट की दशा ऑपरेट होगी तब आपको उस प्लैनेट के रिजल्ट मिलेंगे। अब कुछ योग हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट योगास। पहला है पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग 5 प्लैनेट से बनते हैं कि सन और मून को हम छोड़ देते हैं और 5 प्लैनेट जो बचे, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, इन 5 प्लैनेट से हम ये पंच महापुरुष योग बनते हैं। इनके लिए 2 कंडीशंस हैं योग बनने के लिए। पहली कंडीशन तो ये है कि ये प्लैनेट या तो अपने एक्सॉल्टेड साइन में हो या अपने साइन में। They should be either in their exaltation sign or in their own sign. पहली कंडीशन है। Second condition is कि this planet should be placed in the Kendra, that is in the 1, 4, 7 and 10th houses in your horoscope. तो ये 5 प्लैनेट में से कोई भी प्लैनेट, पहला कंडीशन है कि ये केंद्र में इनका प्लेसमेंट होना चाहिए 1, 4, 7, 10 हाउसेस में, और ये प्लैनेट या तो अपने एक्सॉल्टेशन साइन में हो या अपने ओन साइन में। जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब हम कहेंगे कि ये 5 प्लैनेट जो है पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। इन योग के नाम अलग अलग हैं कि मंगल से जो योग बनता है, मार्स से जो योग बनता है, उसको हम कहते हैं रोचक महापुरुष योग, रोचक महापुरुष योग। मरकरी से जो योग बनता है उसको हम भद्र महापुरुष योग कहते हैं। जुपिटर से जो योग बनता है उसको हम हंस महापुरुष योग कहते हैं। वीनस से जो योग बनता है उसको हम मालव्य महापुरुष योग कहते हैं, और जो शनि से योग बनता है उसको हम सस महापुरुष योग कहते हैं। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महापुरुष? मान लीजिए मंगल से कोई योग बना जिसको कि हम रोचक महापुरुष योग कहते हैं। मंगल जो है या तो एक्सॉल्टेशन साइन में है या अपने साइन में है, और वो आपके केंद्र हाउसेस में उसका प्लेसमेंट है, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के रोचक महापुरुष योग बन रहा है। तो क्या रिजल्ट होगा? मंगल अगर बहुत अच्छा हो गया, मंगल बहुत स्ट्रांग हो गया, और मंगल के जो सिग्निफिकेशंस हैं कि यू मे गेट अ वेरी हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इन द पुलिस और डिफेंस, एक ये हो सकता है। आप दूसरा ये हो सकता है कि यू मे बी वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, जिसका आप बहुत दुनिया में नाम होगा, या मंगल के कारकत्व में यू मे बी वेरी गुड सर्जन आल्सो, you may be a very good in the real estate also, you may be a very good famous agriculturalist also। तो ये मंगल के जो कारकत्व हैं उससे संबंधित कोई भी जो प्रोफेशन होगा या उस फील्ड में आपका नाम होगा, दैट इज द पंच महापुरुष योग। नाउ लेट्स टॉक ऑफ भद्र महापुरुष योग जो मरकरी से बनता है, बुध से। बुध क्या है? बुध इज अ प्लैनेट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, इज अ प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस, इज अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स कि you may be a very intelligent person. Intelligent person means you may be a very good writer. If you talk of communication, actually, you may be a very good negotiator. You may be a wonderful diplomat. You may be a wonderful in marketing field. ये सब चीजें बुध के कारकत्व में आती हैं, और you may be a good orator also. तो जो भी इन चीजों से संबंधित चीजें हैं, इंटेलिजेंस से कनेक्टेड चीजें हैं, यू मे बी गुड एक्टर आल्सो। तो भद्र महापुरुष योग बनाएगा। फिर अगर जुपिटर से देखें, हंस महापुरुष योग। हंस महापुरुष योग इज बेसिकली, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो यू हैव ए प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, स्पिरिचुअलिज्म को, फिलोसॉफी को। तो you may be a wonderful professor in some university, you may be head of some NGO, you may be heading some religious organization also. It's a planet of judgment also. You may be a
जज इन ए वेरी हाई कोर्ट एक्चुअली। तो उस टाइप की चीजें देगा। अगर जुपिटर से पंच महापुरुष योग बन रहा है, अगर वीनस से बनेगा तो हमने कहा मालव्य महापुरुष योग होता है। और वीनस की जो भी सिग्निफिकेशंस हैं, एंटरटेनमेंट है, डिजाइन है, you may be very good fashion designer, you may be very good interior designer, you may be very good actor also, you may be a wonderful producer in a film industry, you may be a good comedian also, you may be wonderful in the IT field also. तो उन चीजों में, उन फील्ड्स में आपका नाम होगा। तो ये मालव्य महापुरुष योग से बनेगा। ऐसे ही अगर शनि से बनता है सस महापुरुष योग, Shani is a planet which gives you status. Without blessing of Saturn, you cannot get a high status in the profession. And this is the main planet. Sun is the planet of authority, and Saturn is the planet of status. तो अगर आपको authority and status दोनों चाहिए, तो naturally Sun and Saturn both should be strong. मान लीजिए गवर्नमेंट में कोई अगर सिविल सर्विस वगैरह में सिलेक्शन होना है, तो सन एंड सैटर्न दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। पॉलिटिक्स में अगर आपको मिनिस्टर वगैरह बनना है, तो नेचुरली सन एंड सैटर्न शुड बी स्ट्रांग। या इवन बिजनेस में भी अगर आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिलनी है, तो दिस प्लैनेट शुड बी स्ट्रांग एक्चुअली। तो इसीलिए जब सैटर्न स्ट्रांग होता है, यू मे बी इन द गवर्नमेंट इन अ वेरी हाई स्टेटस, यू मे बी ए गुड पॉलिटिशियन आल्सो, यू मे बी ए जज आल्सो, बिकॉज इट्स अ प्लैनेट ऑफ जजमेंट आल्सो। तो और वैसे भी एक ये स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है, तो यू मे मूव वेरी हाई ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन आल्सो। तो ये पंच महापुरुष जब बनते हैं, तो इस टाइप के रिजल्ट आपको मिलते हैं लाइफ में। बट यू गेट ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन दैट फील्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। तो ये 5 महापुरुष योग कहे गए। मंगल से रोचक महापुरुष, मरकरी से भद्र महापुरुष, जुपिटर से हंस महापुरुष, वीनस से मालव्य महापुरुष एंड सैटर्न से सस महापुरुष योग होते हैं। फिर जो परिवर्तन योग होते हैं, परिवर्तन योग मीन्स कि द प्लैनेट एक्सचेंजिंग देयर हाउसेस। एक साइन का लॉर्ड दूसरे हाउस में है और दूसरे साइन का लॉर्ड उस हाउस में है। Exchange of planets which यहाँ देखिए, ये इस हाउस का लॉर्ड क्या है? 7 साइन है, वीनस है। वीनस यहाँ पर बैठा हुआ है जी। और इस हाउस का लॉर्ड क्या है? मार्स। मार्स यहाँ बैठा हुआ है। तो इन दोनों प्लैनेट ने अपने हाउसेस एक्सचेंज किए। इन दोनों प्लैनेट्स ने अपने हाउस एक्सचेंज किए। तो ये परिवर्तन हो गया। ये हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ द लॉर्ड ऑफ 2 हाउसेस। तो ये जो परिवर्तन योग होता है, अगर एक भी परिवर्तन योग है आपके हॉरोस्कोप में, तो योर स्टेटस इज अबव द नॉर्मल स्टेटस। अगर 2 परिवर्तन योग हैं तो रेयर है, और 3 परिवर्तन है तो रेयरेस्ट है। And that was only in the horoscope of Indira Gandhi, who had 3 exchanges. Okay, let me see if I have. ये है हॉरोस्कोप इंदिरा गांधी का। सॉरी, क्या हो गया? यस, यही है। सी द पोजीशन। कौन कौन से? जुपिटर और वीनस का है सेम। जुपिटर पहला और वीनस, ये मून एंड सैटर्न का है। मून एंड सैटर्न का एक्सचेंज है, मून एंड सैटर्न का। दूसरा मार्स एंड सन का है। इसका लॉर्ड इसमें है, इसका लॉर्ड इसमें है जी। मार्स एंड सन का एक्सचेंज है। और तीसरा जुपिटर और वीनस का एक्सचेंज है, जुपिटर एंड वीनस का। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे 3 एक्सचेंज। एंड these 3 exchanges made at the Indira Gandhi actually.
इंटरनेशनल लीडर। तो ये एक, मैंने कहा एक एक्सचेंज भी अगर हॉरोस्कोप में होता है तो एक आदमी की जो स्टेटस होता है वो अबव द नॉर्मली होता है, अबव द ऑर्डिनरी स्टेटस होता है। 2 है तो बहुत अच्छा है, और अगर किसी हॉरोस्कोप में आप 3 मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो कुछ नहीं है, सैटर्न है, दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो कोई अच्छा योग नहीं बन रहा। सैटर्न है लग्न में और दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट है, इट्स नॉट ए वेरी गुड पोजीशन। बट जब ये 3 एक्सचेंज हो गए तो मुझे कुछ देर भूख लग रही है, पूरे हॉरोस्कोप का कम्प्लेक्शन ही चेंज हो गया। एंड these are the rarest which normally we don't get. I have not seen any other horoscope apart from this Indira Gandhi's horoscope. तो जब भी आप हॉरोस्कोप को एग्जामिन करें तो काइंडली सी दैट वेदर देयर इज एनी एक्सचेंज और नॉट। और अगर एक भी एक्सचेंज हो, किसी भी हाउस के बीच में हो, किसी भी प्लैनेट के बीच में हो, उसका कुछ ना कुछ रोल आपको देखने को मिलेगा उस व्यक्ति की लाइफ में। Now I would like to discuss one very important योग जिसको हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। It's very interesting, और अक्सर ये योग आपको देखने को मिलेगा in the different persons actually. So what is this योग and how it affects your life? कहते हैं कि जब जुपिटर के साथ राहु या केतु का कंजंक्शन होता है, जुपिटर इज विद राहु और केतु, और जुपिटर इज इन द कॉन्स्टेलेशन ऑफ राहु, या तो जुपिटर के साथ राहु केतु का प्लेसमेंट हो, या जुपिटर का जो प्लेसमेंट है वो राहु के नक्षत्र में है, तब ये योग बनता है जिसको हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। गुरु को चांडाल ने का आपस में संबंध हो गया, गुरु और चांडाल का, तो उसका क्या इफेक्ट होगा आपकी लाइफ के ऊपर। बट दोनों तरह से बन सकता है, जैसे मैंने कहा कि या तो गुरु के साथ राहु या केतु की युति हो, या गुरु का प्लेसमेंट राहु के नक्षत्र में हो, ऐसे नक्षत्र में हो जिसका कि लॉर्ड राहु होता है, तब ये योग बनता है। अब इसमें जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं, sometimes this yoga is a very negative yoga, and sometimes you find that it becomes extraordinary powerful yoga. एक ही योग है, एक ही प्लैनेट की पोजीशन है, but in some horoscope it's really a negative योग, और in some horoscope it's a very positive yoga. तो इस योग होने से there may be 4 situations, और different people may fall in the different categories. एक जो इसका इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं the person may be, or the native may be agnostic or the atheist. It may turn native into agnostic or atheist, मतलब he doesn't believe in the existence of God, नास्तिक बन जाता है। एक सिचुएशन ये होती है कि बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि no, there is no God actually, I don't believe in the existence of God. तो उस टाइप की टेंडेंसी आ जाती है, यू बिकम एग्नोस्टिक और एथीस्ट, नास्तिक आप बन गए। सेकेंड कैटेगरी होती है रिलीजियस बाय गॉड, दैट इज मोर डेंजरस। रिलीजियस बाय गॉड मीन्स कि यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर रिलीजन, कट्टर होते हैं अपने रिलीजन के प्रति, बट दे हेट अदर रिलीजन्स। जितने भी जो आजकल टेररिस्ट टाइप के लोग होते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। The same yoga can make you a terrorist also, because you are very faithful, very loyal to your religion, but you hate other religions. तो उस टाइप की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है आपके अंदर, तो हम उसको कहते हैं रिलीजियस बाय गॉड। थर्ड सिचुएशन में भी कि जो हमारे धर्म के जो रिकॉग्नाइज्ड मेथड हैं जो हम फॉलो करते हैं अपने धर्म ध्यान में, उससे हटकर
they adopt some other means which are not prescribed means for these things. आपने देखा होगा बहुत से जो लोग होते हैं शमशान घाट पे जाकर पूजा करने लगते हैं रात को 12 बजे, या कुछ और उल्टे सीधे तंत्रों में विश्वास करने लगते हैं. अपना जो नॉर्मल जो एक प्रिस्क्राइब्ड मेथड है उसको छोड़कर वो अलग अलग तरह की जो है वो साधन इस्तेमाल करने लगते हैं. उसको हम कहते हैं ब्लैक मैजिक या क्षुद्र मंत्र बोलते हैं हिंदी में. बट यू मे फॉल इन दैट कैटेगरी कि यू मे गेट इन्वॉल्व इन द ब्लैक मैजिक. जैसे आप देखते हैं रोज केसेस आते हैं कि दैट पर्सन वाज इन्वॉल्व इन द ब्लैक मैजिक. तो ये सिचुएशन भी हो सकती है. एक ही गुरु चांडाल योग है, इसमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है. और एक सिचुएशन जो आपको देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा, यू आर वेरी वेल इन द स्पिरिचुअल और द रिलीजियस नॉलेज. आप बहुत ही शास्त्रों के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, लेकिन आप यू हैव सफरिंग विद सम एडिशनल वाइस. आपके अंदर कोई गलत आदत भी है. जैसे बहुत से लोग साधु लोग होते हैं अब जो आजकल जो देखे जाते हैं नॉलेजेबल हैं, देयर नो डाउट, बट उनके साथ कुछ ना कुछ गलत आदत लगी हुई है. कुछ ड्रंकर्ड हैं, कोई ड्रग लेते हैं, कोई वोमेनाइजर हैं, जो आजकल जनरली होता है. तो गुरु चांडाल योग में लीड टू दैट टाइप ऑफ सिचुएशन आल्सो. अगर कोई साधु वगैरह इस टाइप का काम कर रहा है, इसका मतलब देयर इज सम इफेक्ट ऑफ गुरु चांडाल योग. तो ये तो नेगेटिव इफेक्ट हो गए इसके गुरु चांडाल योग के. बट इन सर्टेन केसेस इट बिकम्स अ वेरी वेरी पावरफुल योगा, very powerful yoga. You are really a very knowledgeable person in all your dharma shastras. और वो कौन सी सिचुएशन है जब ये योग इतना पावरफुल हो जाता है कि आपकी जो नेगेटिव चीजें जो अभी बताई उसका इफेक्ट आपके ऊपर बिल्कुल नहीं होता, एंड यू बिकम ए रियली नॉलेजेबल पर्सन. तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि naturally if Jupiter is very powerful then it will not get influenced by the Rahu. Jupiter अगर बहुत पावरफुल है तो naturally उसका राहु का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर इतना नहीं आएगा. ये प्रॉब्लम जो हम लोगों ने डिस्कस किया, particularly the first three, that is possible only when the Guru is weak planet, so it is fully influenced by Rahu, then all these situations may arise. But when Jupiter is the most very powerful planet, naturally it may not be influenced by the bad qualities of Rahu. Second था कि if there is a considerable distance between the causative planets, Jupiter है और Jupiter और राहु केतु के बीच में sufficient distance है. जैसे हमने अभी देखा कि मून राहु के बीच में बहुत डिस्टेंस है, तो राहु का इन्फ्लुएंस मून के ऊपर नहीं होगा. वही चीज यहाँ पर है कि अगर जुपिटर और राहु केतु जिसके साथ ये योग बन रहा है, उन दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है, तो नेचुरली फिर उन प्लैनेट का इफेक्ट जुपिटर के ऊपर नहीं होगा, जैसा हमने देखा अभी जो है. तो ये हमेशा अगर राहु या केतु के नक्षत्र में जुपिटर है, हाँ, तब बस हम इसी चीज से देख सकते हैं कि जुपिटर पावरफुल है कि नहीं. राइट. अगर जुपिटर बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पॉजिटिव डिस्टेंस, बिकॉज उसके नक्षत्र में आ गया वो, तो डिस्टेंस का तो सवाल ही नहीं है. तो उस केस में हम सिर्फ ये देखेंगे कि जुपिटर पावरफुल है या नहीं है आपके हॉरोस्कोप में. तो अगर जुपिटर, सिंपल सी बात है कि अगर जुपिटर बहुत पावरफुल होगा, गुरु अगर बहुत पावरफुल है, तो कोई भी बैड इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी. दैट इज द पर्पस. तो ये जुपिटर और जो पॉजिटिव प्लैनेट है उनमें डिस्टेंस काफी है. या फिर ये कहा कि अगर ये जो योग बन रहा है, दैट इज पावरफुली एस्पेक्टेड बाय वीनस और मरकरी, मतलब कोई भी अगर बेनिफिक प्लैनेट भी उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो नेचुरली जुपिटर विल गेट द सपोर्ट ऑफ दैट प्लैनेट. जुपिटर विल बिकम मोर पावरफुल. Then again, Rahu may not have an influence on, bad influence on Jupiter. तो उस केस में भी ये योग कैंसिल हो जाता है and it results in a very powerful yoga actually. फिर कहा कि जब ये योग वाले जो प्लैनेट हैं, जुपिटर और राहु केतु, अगर वो बेनिफिक प्लैनेट के नक्षत्र में है,
शुभ ग्रहों के नक्षत्र में है और जो ग्रह है वो काफी पावरफुल है, तो उस केस में भी जो है ये योग अच्छे रिजल्ट देता है। फिर कहा कि 9th हाउस इन लॉर्ड इज वेरी पावरफुल। हमारा धर्म का स्थान है 9th हाउस, और अगर भाग्य हमारे साथ में है, 9th हाउस अगर बहुत स्ट्रांग है, तभी भी इस रिजल्ट के बैड इफेक्ट आपको नहीं मिलते हैं। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज कि यू हैव ए पावरफुल धर्म कर्माधिपति योग आपके हॉरोस्कोप में। धर्म कर्माधिपति का मतलब होता है धर्म और कर्म के लॉर्ड का आपस में संबंध होना। धर्म मीन्स 9th हाउस, कर्म मीन्स 10th हाउस। 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड्स का आपस में एसोसिएशन होना, उसको हम धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। एंड दिस इज द योगा ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। किसी भी व्यक्ति के अगर हॉरोस्कोप में धर्म कर्माधिपति योग है, then you see the status of that person. This is the yoga of the highest order as far as profession is concerned. इससे बेटर कोई योग नहीं होता। और संबंध कैसे होगा 9th and 10th हाउसेस का या धर्म और कर्म के हाउसेस के लॉर्ड्स का? संबंध भी 3-4 तरीके से हो सकता है कि 9th और 10th हाउस के लॉर्ड आपस में एक्सचेंज करते हो। 9th और 10th हाउसेस के लॉर्ड आपस में एक्सचेंज कर रहे हो। 9th का लॉर्ड 10th हाउस में है और 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में। दिस इज अ ब्यूटीफुल एसोसिएशन, वंडरफुल एक्सचेंज। राजयोग वैसे भी बन गया और वैसे भी एसोसिएशन भी हो गया। सेकंड इज कि 9th लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग द 10th हाउस and 10th lord is aspecting the 9th house. 9th lord aspecting 10th house and 10th lord aspecting 9th house. उस तरह से भी एसोसिएशन हो गया। थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि both the lords of 9th and 10th houses, they have an aspect on each other. एक दूसरे को aspect कर रहे हो, तभी भी ये योग बन गया। And fourth condition may be when they are together. Lord of 9th and 10th houses, they are in conjunction, they are placed together in a particular house. तभी भी धर्म कर्माधिपति योग बन गया। तो कहते हैं कि अगर आपके हॉरोस्कोप में पावरफुल धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है, तो उस केस में ये गुरु चांडाल योग के नेगेटिव इफेक्ट नहीं आते हैं। Because you have to get a very high position in a profession. So if you are in that field, so you can't be bad actually. You can't get a bad name in that case. और फिर ये कहा कि अगर जुपिटर और केतु 12th हाउस में प्लेस्ड हो। Why? Because 12th हाउस हमारे हाउस ऑफ सैल्वेशन, मोक्ष स्थान है। And Ketu is supposed to be the main planet of moksha. It's the primary significator of moksha, and Jupiter is the secondary significator of moksha. तो अगर मोक्ष के स्थान में ही दोनों मोक्ष के प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाए, तो नेचुरली द पर्सन कैन नॉट डेवलप दोज बैड क्वालिटीज। तो उस केस में भी जो ये योग के जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो सब नलिफाई हो जाते हैं या जो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि धर्म कर्माधिपति योग में अगर ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं, तो उस केस में इसके जो रिजल्ट होते हैं बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हो जाते हैं, एंड पर्सन बिकम्स ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो वी कैन हैव सम एग्जांपल्स आल्सो। सर एक क्वेश्चन है धर्म कर्माधिपति योग का जी। अगर 9th और 10th हाउस का दोनों के लॉर्ड सैटर्न ही है, 10 और 11, तो वो कॉमन लॉर्ड है तब भी वो नहीं आएगा? इट्स नॉट एग्जैक्टली, बट इट्स अ वेरी गुड पोजीशन फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स वेरी गुड बट नॉट एग्जैक्टली, नॉट योगा। हाँ, नॉट एग्जैक्टली द धर्म कर्माधिपति योग, बट इट्स सिमिलर टू दैट यू कैन से, बट द लोअर ग्रेड एक्चुअली। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये कंडीशंस में ये योग नलिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ रामकृष्ण परमहंस, एंड
In his case, Guru was placed in the constellation of Rahu. ये जो गुरु है यहाँ पर Jupiter, it is in the constellation of Rahu, and that's why this Guru Chandal Yoga. Guru is in the constellation of Rahu, and that's why this Guru Chandal Yoga. Now you see how it is gets cancelled. How it gets cancelled. बताइए कैसे कैंसिल हो रहा है ये जो कंडीशन पढ़ी आपने अभी? सर वीनस और सैटर्न का एक्सचेंज है सर। 9th house and its lord are very powerful. यहाँ देख रहे हैं अभी कंडीशन है कि if 9th house is very powerful, then the bad effect of gets nullified. तो यहाँ पर पोजीशन क्या है 9th house की? Lord of Lagna. Lord of Lagna is placed in the 9th house in the exaltation, in its exaltation sign. There cannot be a better position of Lagna Lord. Lagna Lord in the trine house, that too in exaltation. So there cannot be a better position of this 9th house also. And 9th lord is also powerful. लग्न का लॉर्ड अगर ट्राइन में बैठ जाता है तो इससे बेटर राजयोग नहीं होता, और वो भी अपनी एक्सॉल्टेशन पोजीशन में। और कौन इसको एस्पेक्ट कर रहा है? एस्पेक्टेड बाय जुपिटर। फिफ्थ एस्पेक्ट है, इट इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, एंड देयर इज नो अदर मैलेफिक एस्पेक्ट। और कोई मैलेफिक एस्पेक्ट नहीं है। और I told you that whenever we talk about a yoga, you have to see the position of the dispositor of the sign also. जो हम 9th house की बात करेंगे तो ये तो हमने एग्जामिन कर लिया, but we have to examine the position of dispositor of this sign also. तो डिस्पोजिटर क्या हुआ इसका? 7th साइन है, इसका लॉर्ड वीनस है, तो हमें वीनस की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। तो वीनस यहाँ पर एक्सॉल्टेशन साइन में बैठा हुआ है। अगेन इट्स अ वेरी गुड पोजीशन, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। तो इस वजह से ये योग था, ये जो नेगेटिव योग था, गुरु चांडाल योग था, उसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स थे वो खत्म हो गए। और खत्म ही नहीं हुए, बट it has resulted into a very powerful yoga which gave him a very good knowledge about all these things. ये हमारे हिटलर साहब का हॉरोस्कोप है। तो यहाँ पर जुपिटर और केतु इकट्ठे हैं। जुपिटर एंड केतु, they are together, so it resulted into the Guru Chandal Yoga, right? जी। यहाँ क्या पोजीशन है? किसी वजह से कैंसिल हो रहा है। पर सर इसमें जुपिटर अपने साइन में है तो स्ट्रॉन्ग नहीं उससे होगा? मतलब नहीं होता। जस्ट बिकॉज अपने साइन में है, इट डजंट मीन एनीथिंग एक्चुअली। ओके। इफेक्ट तो आएगा केतु का अगर राहु का है तो। ओके। यहाँ पर किसी तरह से कैंसिल हो रहा है, जो हमने कंडीशन डिस्कस की हैं उसमें से। नहीं हो रहा। You see the position of Lord of this house, 9th house. You see the position of Lord of Lagna. 9th house के लॉर्ड की क्या पोजीशन है? ये है मरकरी। मरकरी के ऊपर किन किन प्लैनेट का एसोसिएशन है? सन है, मार्स है, सैटर्न भी उसको देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है सर। हाँ, जुपिटर भी देख रहा है और साथ में केतु भी देख रहा है। जी हाँ। तो इट हैज एन एसोसिएशन ऑफ 1, 2, 3, 4 malefic planets. So it's not strong. You can't say that 9th house is strong. So he had the full effect of
गुरु चांडाल योग, एंड ही हैड हेट्रेड टुवर्ड्स द ज्यूस, जो हम रिलीजियस बाइगॉट की हम बात करते हैं। तो उस टाइप की जो सिचुएशन डेवलप हुई, तो इसका पूरा इफेक्ट गुरु चांडाल योग का मिला। इवन जवाहरलाल नेहरू हैड दिस योग, गुरु चांडाल योग। और इसमें भी वो कैंसिल नहीं होता पूरी तरह से, इसमें भी कुछ चीजें ठीक हैं, बट देयर इज नो कंडीशन व्हिच मेक्स दिस योगा नलिफाइड। तो उसमें भी मतलब थोड़ा सा जो जैसे एक एथीस्ट टाइप की एक पोजीशन डेवलप हो जाती है, जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, तो ही हैड दैट टाइप ऑफ क्वालिटी एक्चुअली। इससे इनके हॉरोस्कोप में काल सर्प योग बन रहा है क्या? बिल्कुल। तो इनको लाइफ में किस चीज की कमी थी? वाइफ। मैंने कहा था कि जब काल सर्प योग बनता है कोई तो एक चीज कमी होती है। there is some imbalance in the life. Some of the important aspect of the life is missing. Some of the important aspect of the life is missing. और वो भी जब जिस हाउस में राहु होता है उसके सिग्निफिकेशन से कनेक्टेड कोई भी लाइफ का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस होता है आपकी। किसी के हेल्थ अच्छी नहीं होती, किसी के बच्चे की पोजीशन अच्छी नहीं होती, किसी की मैरिज का सुख नहीं मिलता, किसी को प्रोफेशन का सुख नहीं मिलता, किसी को माँ का सुख नहीं मिलता, किसी को फादर का सुख नहीं मिलता। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ राहु आप बता सकते हैं कि किस लाइफ के एस्पेक्ट में कमी होगी। और जहां भी राहु का प्लेसमेंट होता है तो उस लाइफ के एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ राहु किस हाउस में है? 12th हाउस में। तो हाउ इट इज कनेक्टेड विद द मैरिज? मैरिज से इसका रिलेशन क्यों बना? मैरिटल हैप्पीनेस। जुपिटर बैठा हुआ है इनकी मैरिज के हाउस में, जुपिटर सनसाइन है, उसके राहु उसको देख रहे हैं। तो क्या आई एम सेइंग कि जिस घर में जिस हाउस में राहु प्लेस्ड होता है उस हाउस के सिग्निफिकेशन से कनेक्टेड some important aspect of the life is missing. And as you said, everyone said that he had the problem in the marital life, or his wife died at a very early age. So why it happened actually? पर ये तो बहुत बड़े कैसनोवर हैं इनका। तो इनका रिलेशनशिप एक फीमेल से तो 10 फीमेल से रहा, और इनका हाउस ऑफ मैरिज में जुपिटर दिखा रहा है इनका सनसाइन लॉर्ड, और इनके जो रूलिंग साइन है वो भी मून है। हाउस ऑफ मैरिज ये है, हाँ 10 नंबर बैठा है ना, तो सैटर्न का होता है। साजी का लॉर्ड है जुपिटर। 10 इज साजी ना? नहीं वो तो ये 9 इज साजी, कैप्रिकॉर्न है। राइट कैप्रिकॉर्न। उसको अभी छोड़ देते हैं। सर ये मैरिज को देख रहा है। सर ये मैरिज के हाउस से 6th हाउस हो गया। मैरिज के हाउस से 6th हाउस हो गया। वंडरफुल। ये देखिए, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि 12th हाउस इज द 6th हाउस फ्रॉम हाउस ऑफ मैरिज। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो हाउस ऑफ मैरिज है ये वाला, इससे छठा घर है ये जी। एंड व्हाट 6th हाउस इंडिकेट लॉसेस, प्रॉब्लम्स, लॉस ऑफ द स्पाउस, लॉसेस ड्यू टू द मैरिज, लॉसेस इन द मैरिज, द लॉस ऑफ स्पाउस जी। तो इसलिए जहां भी राहु, अब आजकल क्या होता है कि आप किसी भी जाएंगे, तुम्हारे राहु केतु है, काल सर्प योग है, तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देंगे, नासिक में भी भेज देंगे, इधर भी भेज देंगे, उधर भी भेज देंगे। आप उपाय करते रहिए, घूमते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। एंड फॉर एवरी प्रॉब्लम दे विल ब्लेम कि राहु केतु है ना इसलिए हो रहा है। और जैसे मैरिज में होता है कि मैरिज हो गई आपकी सबकी, और कोई भी प्रॉब्लम आती है मैरिटल लाइफ में, मांगलिक दोष है ना, हमने पहले ही कहा था कि मांगलिक दोष है इसलिए प्रॉब्लम आएगी। तो एवरी ब्लेम गोज टू मांगलिक दोष, वेयर इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉब्लम। वही यहाँ पर
राहु केतु का एक जो काल सर्प योग होता है जिन लोगों के, उनको लोग घुमाते रहते हैं कहीं ना कहीं जो है कि सारी प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है, बट राहु केतु एक्सिस नथिंग टू डू विद दैट एक्चुअली डे टू डे प्रॉब्लम्स। एक लाइफ का एस्पेक्ट है, वो मिस होगा, मिस उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो जो होना है वो तो होगा, बट डे टू डे प्रॉब्लम्स इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। इट शोज ओनली इम्बैलेंस इन द लाइफ, वो रहेगा, उसमें आप कोई उपाय कुछ काम नहीं करेगा। बट हम लोग पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं राहु केतु का उपाय करते हुए, और राहु केतु का कालसर्प योग हो या ना हो, आप किसी के पास भी जाएंगे, नहीं है आंशिक है, एक प्लैनेट जा रहा है इधर, 2 प्लैनेट जा रहे हैं, हाँ थोड़ा सा और आंशिक है, आपको भ्रमित करते रहेंगे। और जबकि अगर एक भी प्लैनेट अगर बाहर जाता है राहु केतु की एक्सिस के, तो देन इट्स नॉट ए कालसर्प योग, कालसर्प योग होता ही नहीं है, लेकिन वो आंशिक और पूरा आंशिक और छोटा आंशिक बना के आपको घुमाते रहेंगे सब जगह। We will discuss another very important योग जिसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। It's a wonderful योग, it's a very interesting योग also। 6, 8, 12 जो हाउसेस होते हैं, इनको हमने त्रिक हाउस कहा, because they govern the negative significations of our life। हम नहीं चाहते कि हमको नेगेटिव सिग्निफिकेशन लाइफ में मिले, we want to avoid them। और इसीलिए हम कहते हैं कि 6th हाउस का लॉर्ड 6 में हो, 8th का लॉर्ड 8th में हो, 12th का लॉर्ड 12th में हो, तो बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी हॉरोस्कोप की। ये कम से कम दूसरे हाउस को खराब नहीं कर रहा है, क्योंकि इन हाउसेस के लॉर्ड जहां भी बैठते हैं उस हाउस को सत्यानाश कर देते हैं, या किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर इन हाउस में चला जाता है तो उस हाउस का भी सत्यानाश हो जाता है। So we don't want that these houses some planets should be placed in these houses, or the lord of any house should be placed in this house, in these houses। तो ये नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे जैसे जल्दी से इनसे हमें छुटकारा मिले या किसी तरह से ये खत्म हो हमारे, वही सबसे बड़ा योग है लाइफ का। और उसी से संबंधित योग बनता है कि whenever lord of any 2 trick houses they get conjunction or they are conjunct, they are together, then this yoga is formed। जब इन दोनों हाउसेस के लॉर्ड आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? 2 नेगेटिव हैं, 2 नेगेटिव चीजें जब मिलती हैं तो आप जानते हैं कि इट बिकम्स ए पॉजिटिव, because both try to damage the significations of each other, both try to damage the significations of each other, and in that process we gain। वही हमको चाहिए भी कि इन 2 त्रिक हाउसेस के जो सिग्निफिकेशंस है वो डैमेज हों, and that is possible when only the lord of these त्रिक houses they get conjunct। तो जैसे ही कंजंक्ट होंगे तो हमें जो एक दूसरे के सिग्निफिकेशंस को डैमेज करते हैं और उसका फायदा हमें होता है, तो हमने उसको राजयोग कहा, विपरीत राजयोग कहा। और इसमें एक चीज तो है कि हाउस के सिग्निफिकेशंस डैमेज हो रहे हैं, बट इन दिस प्रोसेस द सिग्निफिकेशंस ऑफ द इन्वॉल्व्ड प्लैनेट्स they also get damaged। जैसे कहा कि हाउस के सिग्निफिकेशंस डैमेज होते हैं, उसी तरह से इस योग में जो प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं उनके सिग्निफिकेशंस भी डैमेज हो जाते हैं। दैट इज ए नेगेटिव पॉइंट फॉर अस। बट अगर 2 हाउस के त्रिक हाउस के सिग्निफिकेशंस डैमेज होते हैं तो इट्स ग्रेट गेन फॉर अस। अब बाकी योग आप देखते हैं कि उनके रिजल्ट्स जो है नॉर्मली आपको थ्रू आउट लाइफ मिलते हैं, बट दिस इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट योग। इसके रिजल्ट जो है, पहली चीज तो मिलते किस प्रकार है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट।
इसके जो रिजल्ट मिलते हैं बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ ए फ्रेंड और योर ओन पर्सन और एन अपोनेंट। किसी की डेथ होगी, किसी का डाउनफॉल होगा, वो आपका अपना आदमी भी हो सकता है, आपके अपोनेंट का भी आदमी हो सकता है, उसकी वजह से गेन होगा आपको। जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हुई, राजीव गांधी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। नोबडी एक्सपेक्टेड दैट he will become the prime minister. राजीव गांधी got died and नरसिम्हा राव became the prime minister. उसका अपना आदमी, अपनी पार्टी का आदमी का लॉस हुआ और उसको फायदा हो गया। या हम कहें कि कांग्रेस का लॉस हुआ और बीजेपी को फायदा हो गया, मोदी became the prime minister. तो जो बेनिफिट होता है इस योग का वो इस तरह से होता है कि बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ ए friend or your own person or an opponent also, दोनों तरह से फायदा हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि पता कैसे लगेगा आपको कि फायदा किससे होना है, आपके अपने आदमी से होना है या किसी अपोनेंट के डाउनफॉल या डेथ से होना है। वो भी हम मालूम कर सकते हैं कि अगर ये योग त्रिक हाउस में ही बन रहा है, अगर ये योग त्रिक हाउस में ही बन रहा है, 6, 8, 12 हाउसेस में बन रहा है, इन तीनों हाउसेस में इज दिस, then the benefit is because of the opponent, death or downfall of the opponent. और अगर ये योग किसी और हाउस में बन रहा है, then the benefit is because of your own person, death or downfall of your own person. तो ये आपको पता लग जाता है कि आपको बेनिफिट अपने आदमी की डेथ या डाउनफॉल से होगा या आपके अपोनेंट की डेथ या डाउनफॉल से होगा। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस योग इज द रिजल्ट ऑफ दिस योगा आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे आपने इतने सारे राजयोग देखे और धर्म कर्माधिपति योग है या और भी राजयोग हैं, the results of those yogas are sustainable throughout the life, but the results of Vipreet Raj Yoga are not sustainable for a long time. That is another main point about this yoga. इसकी जो भी रिजल्ट मिलेंगे आप बहुत लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इट मे बी ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हुई, Rajiv Gandhi becomes the prime minister, but only for one term. Rajiv Gandhi dies, Narasimha Rao becomes prime minister, but only for one term. He can't continue for a long time. So results are not sustainable for a long time. तीसरा जो important factor है about this योग, benefit आपको दो तरह से मिल सकता है। आपको directly आपको position मिल गई, you became the prime minister. So that is the direct benefit. Second is you are not occupying that particular position, but you are some relation or friend or brother or sister. He gets that position. Some known person gets that position. And indirectly you are taking benefit from that person. तो दोनों तरह से फायदा हो सकता है, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो आपको खुद को पोजीशन मिल जाती है और इनडायरेक्ट में आपका कोई भी रिलेशन है या नोन पर्सन है उसको पोजीशन मिलती है एंड यू गेट द इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्सन। तो वो हमें कैसे पता लगेगा कि डायरेक्ट बेनिफिट मिलना है या इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलना है? तो उसके बारे में कहा गया कि अगर इस योग के साथ लग्न का एसोसिएशन है तो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, और अगर इस योग के साथ लग्न का एसोसिएशन नहीं है तो डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी कैन टेल यू एवरीथिंग, इट्स वंडरफुल नॉलेज एक्चुअली, कि पहली चीज तो विपरीत राजयोग है या नहीं है, और उसके बारे में यही कहा कि इस रिजल्ट्स आर नॉट लाइक ए नॉर्मल राजयोग, result are because of the death or downfall of your own person or maybe your opponent also. Results are not sustainable for a long time.
थोड़े टाइम के लिए मिलेंगे आपको। अगर ये योग त्रिक हाउस में ही बनता है तो आपके किसी एनिमी, अपोनेंट या किसी कॉम्पिटिटर के डेथ या डाउनफॉल से फायदा होगा, और अगर ये योग किसी और हाउस में बन रहा है तो आपको फायदा अपने आदमी की डेथ या डाउनफॉल से ही होगा। और डायरेक्ट बेनिफिट जब भी मिलेगा जब इस योग के साथ लग्न का या असेंडेंट का या फर्स्ट हाउस का एसोसिएशन होगा, अदरवाइज आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर, देयर इज नो डाउट। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। Anyway, इस केस में राजीव गांधी जी की है ये। हाँ, अभी हम डिस्कस करते हैं। अब ये एक एक हॉरोस्कोप डिस्कस करते हैं कि कैसे विपरीत राजयोग है, कैसे बेनिफिट मिला। इसमें जो विपरीत राजयोग कैसे बन रहा है आप देखिए। 8th house, Lord are in first house. हाँ जी, 12th लॉर्ड और 8th लॉर्ड इकट्ठे बैठे हैं लगन में। राइट। 12th हाउस का लॉर्ड क्या है? मून है, और 8th हाउस का लॉर्ड क्या है? जुपिटर है, राइट। जी। तो मून और जुपिटर देखिए दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं लगन में। मून और जुपिटर दोनों लग्न में बैठे हुए हैं। और जब ये लग्न में बनता है योग तो बेनिफिट किससे होता है? अपने आदमी, फ्रॉम योर ओन पर्सन, फ्रॉम योर ओन। तो वो फायदा होना है। फिर ये योग ही लग्न में बन रहा है तो डायरेक्ट बेनिफिट होना ही होना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि योग जो है वो लग्न में बन रहा है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से his mother died and he became the prime minister, तो इस तरह से फायदा हुआ। ये नरसिम्हा राव जी का देखिए जरा। उसी केस में ओपोनेंट को फायदा कैसे हुआ? अपोनेंट को नहीं हुआ, मैंने कहा कि अपने आदमी की डेथ या डाउनफॉल से आपको फायदा होता है, अपने आदमी की वजह से फायदा हुआ, अपोनेंट को फायदा नहीं हुआ। Okay. His mother died and he became the prime minister, is what I'm saying. ठीक है? Can I clarify one more thing, uncle? हाँ, why not? You can ask any question. जब you know there's the lord of 6th, 8th or 12th are conjunct. उसमें conjunct की definition हमको फिर we have to see the degree separation, right? Naturally, they have to be together. Got it. Okay, up to 5-6 degrees. Yeah. Okay, understood. अब देखिए ये नरसिम्हा राव का हॉरोस्कोप है, इसमें कैसे बना विपरीत राजयोग? सर 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। 12th लॉर्ड एंड 8th इन 10th हाउस। इन 10th। इसका लॉर्ड और इसका लॉर्ड, इसका लॉर्ड सन है, इसका लॉर्ड मार्स है। जी। तो सन एंड मार्स दे आर टुगेदर हियर, जी। राइट, इन द 10th हाउस। जी। तो बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ योर ओन पर्सन, नॉट because of opponent, it's because of your own person. जी। और इसके साथ Mercury is also placed, which is the lord of ascendant. इसका मतलब ascendant का association भी है, तो डायरेक्ट बेनिफिट है, आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इस योग का। तो इसलिए ये नरसिम्हा राव, he became the prime minister, and you see at that time nobody expected that he can occupy the position of prime ministership, and he was not enjoying the good health also. He didn't contest for the election, but suddenly he gets a call to come and take the oath of prime minister, because this yoga was operating at that time. And when you study the Shan chart, D10 chart, you find that these planets were very important from profession point of view, and dasha of those planets was operating at that time. और सन मार्स की दशा चल रही थी, and that's why the विपरीत राजयोग became operative actually, और he got the position. तो इस तरह से ये विपरीत राजयोग काम करता है। अब यहाँ देखिए अडवाणी, हाँ पूछिए सर। एक चीज पूछनी थी सर। सर किसी फीमेल की हॉरोस्कोप है और वो शी इज अ हाउसवाइफ ओनली, और उसका सर 8th में उसका विनस है लॉर्ड और 12th का उसका लॉर्ड है मरकरी,
और वो दोनों 6th हाउस में बैठे हैं, मरकरी और वीनस एक साथ हैं 6th हाउस में। करेक्ट। तो हाँ, तो ये विपरीत राजयोग तो हुआ, बट शी इज सिंपली ए हाउसवाइफ। तो हम क्या समझेंगे, उसके अपोनेंट कौन हुए, वो अपोनेंट के हाउस में। देखिए मैंने कहा कि देशपात काल का आपको ध्यान रखना है। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि फायदा होना ही नहीं है इस तरह से, तो फिर इट्स इररिलेवेंट एक्चुअली। ओके फाइन। वैसे राजयोग तो बन गया। हाँ, बट देश पात्र काल का आपने ध्यान रखा जी कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो और नहीं, अभी दिस टाइम शी इज टू यंग, तो ये हो सकता है कि हाँ कभी कभी होता है ऐसा कि सडनली उसको गेन हो जाता है, और गेन होगा ही जब, जैसे मान लीजिए शी गोज टू सम प्रोफेशन, मैं सोचा भी प्रोफेशन नहीं है कुछ, हाउसवाइफ आपने कहा, तो कभी कभी फायदा हो जाता है कि आपने कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन हो या कोई पोजीशन आपको मिल जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एनीथिंग कैन हैपन। आप देखिए, मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, you are number 2 position, and the person who is in number position, you know that he is lower in your age than your age, आपका कोई चांस नहीं है उस पोजीशन में आने का, बट सडनली कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसका डाउनफॉल हो जाता है किसी तरीके से, एंड यू एक्वायर दैट पोजीशन। तो अपोनेंट के या कॉम्पिटिटर के डाउनफॉल होने से आपको फायदा हो गया, तो इफ शी गोज इनटू सम प्रोफेशन, तो इस टाइप का बेनिफिट हो सकता है। तो कभी कभी लोग बैठे हुए होते हैं अपने, मान लो लालू जी की वाइफ राबड़ी देवी, she became prime minister, who expected that, sorry, chief minister, who expected that she will become the chief minister, तो हाउसवाइफ ही थी वो भी। हाँ जी, तो बेनिफिट मिलता है इस तरह से, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलता। तो डिपेंड करता है कि किस पोजीशन में है आपको और किस टाइप का आपको बेनिफिट मिलेगा। जी। अब ये एक और क्वेश्चन है अंकल, इन सब योगास में हमने जो स्पेसिफिक हाउस का कारक है उसका कोई डिस्कशन नहीं किया। नहीं, मैंने कहा कि ये सारे हाउसेस हमारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं। हाँ, वो मैं समझ गई अंकल, बट जनरली हम योगा किसी भी 2 हाउसेस के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस खत्म हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा गेन हो गया ना एक तरह से। हाँ, वो मैं समझ गया। हाँ, it's a big gain, and that's why we call it the राजयोग। विपरीत राजयोग कहते हैं, जो विपरीत हाउसेस के योग थे उनसे बना हमें राजयोग। ठीक है अंकल, वो तो मैं समझ गई बात, क्योंकि वो हमें जो राशि प्लेस्ड है उसका जो लॉर्ड है उसके हिसाब से लगाया ना सारा। बिल्कुल। बट माय क्वेश्चन इज कि अब जैसे हम 8th हाउस देखें, 8th हाउस का जो कारक है वो हुआ शनि, करेक्ट? तो हमने उस हिसाब से कोई कंप्यूटेशन नहीं करते योगास की। नहीं, कारक के हिसाब से नहीं है। बेसिकली दिस इज विद द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस, लॉर्ड ऑफ द प्लैनेट्स। ओके, अंडरस्टूड। या ये one question. हाँ Sir, for this yoga, is this a necessary condition that ascendant should be strong? No. Ascendant lord should be strong. देखिए, no? हाँ, that is a basic condition for all yogas. Okay. Unless your ascendant is strong, you cannot expect to occupy a higher position, higher status position. कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि हायर स्टेटस पर जाएगा और उसका असेंडेंट वीक हो, क्योंकि प्रोफेशन में असेंडेंट हैज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। सारा कुछ तो प्रोफेशन आपके असेंडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपके अंदर कोई पैशन नहीं है, कोई विल पावर नहीं है, कोई मेंटल फैकल्टी स्ट्रांग नहीं है, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या प्रोफेशन करेंगे? You cannot, maybe involved, but you cannot get higher status. You have to be strong. So that's why Lagna plays a very important role in profession. And किसी भी जो higher position में लोग गए हैं, आप देखिए Lagna has to be strong. और जब हम profession को discuss करेंगे, then you see the relevance of first house in the matter of profession. And why in the matter of profession? In every aspect of the life. और कहते हैं इसीलिए है कि लग्न स्ट्रांग है तो आप सब कुछ ठीक है, या मून स्ट्रांग है तो सब कुछ ठीक है। आप लाइफ को बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं, लेकिन लग्न स्ट्रांग नहीं है और बाकी हाउसेस कितने भी स्ट्रांग हो, कोई फायदा नहीं होने वाला उसका आपको।
लग्न इज द प्राइम हाउस, इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग अगर कुछ लाइफ को एंजॉय करना है आपको। एनीवे, दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ अडवाणी साहब। इसमें देखिए कैसे बनता है। Sixth Lord, Lord of sixth and eighth Lord and 12th 12th house. 6th and 8th houses। And ये Lagna इसका, Lord is also involved in हाँ, this. इसका लॉर्ड मार्स है, इसका लॉर्ड मरकरी है। ये दोनों यहाँ 12th हाउस में चले गए। अब ये देखिए, एज इन कंट्रास्ट टू अदर योगास दैट वी हैव सीन, कि वो अच्छे हाउस में बन रहे थे, एंड नाउ दिस इज इन द त्रिक हाउस इटसेल्फ। और त्रिक हाउस में होने से मतलब बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ opponent. There was a downfall of Congress party, so BJP gained in that process, and he occupied that position because Lagna Lord is also with that. He became the deputy prime minister, home minister, and all those things. क्योंकि Lagna Lord का association भी है। Lagna Lord is Mars, तो Mars ही है Lagna Lord, तो वो भी already है वहां पर, तो इसलिए हम कहेंगे कि डायरेक्ट बेनिफिट मिला। बट इस केस में इन कॉन्ट्रास्ट टू राजीव गांधी एंड नरसिम्हा राव, he got the benefit because of the downfall of the opposition party. And sir, does this also mean कि 6th और 8th house के जो negative aspects थे वो खत्म हो गए? बिल्कुल। Okay. That's why he is alive till this age. 6th हाउस तो हमारी यही बीमारियां वगैरह को दर्शाता है। 8th हाउस हमारी अगर कोई प्रॉब्लम होगी लॉन्गेविटी में, उसको भी खत्म करता है। और एक चीज और देखिए कि व्हेन वाजपेयी साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ बैड हेल्थ एट दैट टाइम, so there were a lot of rumor कि he may occupy that position, he may become the prime minister also. If you remember, that was the situation at that particular time. याद है ना आपको कि एक टाइम ऐसा आया था कि there were a lot of rumors कि he may become the prime minister, but नहीं बन सकते, because benefit is not because of the downfall of your own person. Benefit is not because of the downfall of your own person. Benefit can be only because of the death or downfall of the opponent actually. तो इसलिए कोई स्कोप नहीं बनता इस योग के हिसाब से। So all these things you can examine or analyze from any horoscope, and such thing they give very good indications. And हम लोग देखते रहते हैं कि ऐसा योग तो कोई था नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो कैसे बन गया, कि how he occupied such a strong position, because ये विपरीत राजयोग है, वो ऑपरेट हो गया, and most of us may be unaware about this योग। तो आप कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे आप बताएंगे कि क्यों बन गया, unless you have a knowledge of all these yogas. And yogas, they always supersede the other position of planets. तो योग बनता है तो आपके हॉरोस्कोप का पूरा कम्प्लेक्शन ही चेंज हो जाता है, फिर वो बाकी जो नॉर्मल प्लैनेट की पोजीशन काम नहीं आती, योग ऑपरेट करेगा, उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस योगास। हमने जैसे देखा कि हमने कहा कि मून राहु का कॉम्बिनेशन बहुत खराब है हॉरोस्कोप में। नॉर्मली मून राहु का कॉम्बिनेशन, जैसे हमने जुपिटर राहु का कहा गुरु चांडाल योग है, और हमने कहा कि मून राहु इज इक्वली बैड, रादर वर्स देन गुरु चांडाल योग। बट कुछ कॉम्बिनेशंस हैं कि मून राहु कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इनटू अ शक्ति योग। शक्ति योग मीन्स यू गेट एनॉर्मस पावर, the same planet, moon and rahu, and this power may be used for destruction, it may be used for construction also. उसका आप पॉजिटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नेगेटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो अभी हमने डिस्कस किया परमहंस का जो हॉरोस्कोप डिस्कस किया, उसमें मून राहु का कॉम्बिनेशन है, एंड दैट मेड दैट शक्ति योगा in the horoscope of Paramhans, पॉजिटिव योग था वो। और जब आप हिटलर का हॉरोस्कोप देखेंगे तो सेम शक्ति योगा बट इन नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाला, दैट यू कैन फाइंड आउट कि ये शक्ति को कहाँ इस्तेमाल करेगा, प्रोडक्शन में करेगा, कंस्ट्रक्शन में करेगा या डिस्ट्रक्शन में करेगा।
दैट आल्सो यू कैन फाइंड आउट। जैसे आपने इस योगा के सारे रिजल्ट देखे तो शक्ति योगा से भी आपको पता लग जाता है कि पावर कम मिलेगी। और सेम मून राहु कॉम्बिनेशन विच वी थिंक एवरीबॉडी थिंक्स बैड कॉम्बिनेशन। So there are so many things in astrology, but unless you have a knowledge or you know those things, you can't be very accurate in the predictions. So anyway, I stop here. Now it's your turn. You can ask, clarify all your doubts also. सर एक क्वेश्चन डिग्रीज को लेकर है जी। सपोज सन और सैटर्न अगर एक ही हाउस में बैठे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वो उस हाउस की सिग्निफिकेशन खत्म कर देते हैं, सेपरेटर प्लैनेट्स होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उनकी डिग्री सपोज सन इज इन 1 डिग्री, सैटर्न इज इन 28 डिग्रीज, हाँ तो उसका इफेक्ट नहीं होगा उतना। अच्छा, बट स्टिल तब भी होगा। हाँ देखिए, जो 4 प्लैनेट होते हैं, सन, सैटर्न, राहु एंड द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। सन, सैटर्न, राहु and lord of 12th house. These planets are known to give separating tendency. Right. जब भी इन planet का association किसी भी house के साथ होता है, तो हमें उस planet के signification से अलग करते हैं. It means we will not get the significations of that house. मान लीजिए कि 7th house में हो गया, 7th house में तो marital happiness नहीं मिलेगी आपको. 5th house में हो गया, हो सकता है संतान सुख ना मिले आपको. राइट। लग्न में हो गया तो हो सकता है अपने आप से विरक्ति हो जाए आपको। तो उस टाइप की सिचुएशन होती है कि ये हमें देखना पड़ता है कि सन, सैटर्न, राहु एंड द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। लेकिन अगर डिग्रीज ज्यादा है तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा नेचुरली, वो उसका लेकिन रहेगा। हाँ, इन्फ्लुएंस आपस में वो कम हो जाता है। जी जी, थैंक यू सर। आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर, जैसे हमने गुरु चंडाल योग में देखा राहु एंड केतु के नक्षत्र में अगर जुपिटर है, राइट, तो becomes that yoga, but in other yogas we have not seen any planets nakshatra. So नहीं, देखिए हर योग अपने अलग अलग ढंग से बनता है, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन विच मेक्स द योगा। और गुरु चांडाल के योग के बारे में कंडीशन दी कि या तो साथ हो या नक्षत्र में हो उसके, बट और योग के साथ जरूरी नहीं है। एवरी योगा विल हैव डिफरेंट कंडीशंस। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि पंच महापुरुष योग बन रहे हैं, वो तो एक ही प्लैनेट से बन रहे हैं, वो तो 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है ही नहीं। कुछ योग होते हैं वो 3 प्लैनेट से बनते हैं। तो हर योग के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर का हम उसका नक्षत्र भी कंसिडर करें या सब चीज कंसिडर करें। ओके सर, तो जो हमने ये 27 नक्षत्रस का पढ़ा है, तो इनको मतलब हम कैसे यूज करेंगे रिजल्ट्स निकालने में? रिजल्ट्स में बताया ना मैंने कि जैसे हम राजयोग हमने देखा कि कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में है, उसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है, तो दैट विल हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर द रिजल्ट्स ऑफ दैट प्लैनेट। अल्टीमेटली वी आर कंसर्न विद द नक्षत्र आल्सो, कि कौन सा, जैसे मान लीजिए आज की डेट में वी वर सेइंग दैट 6 प्लैनेट्स आर इन देयर ओन साइंस, और उसमें हमने ये भी देखा कि सन जो है अपने नक्षत्र में है आज, तो इट बिकम्स वेरी पावरफुल। अपने साइन में भी, अपने नक्षत्र में भी है, तो इट बिकेम वेरी पावरफुल। तो ये हम एग्जामिन करेंगे कि हर प्लैनेट किस नक्षत्र में है, उससे हमारे रिजल्ट जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस होंगे। जो योगा है वो अपने दशा में आके फ्रूटफुल होते हैं या फिर विदाउट दशा भी फ्रूटफुल होते हैं? नहीं, नॉर्मली अपनी दशा में रिजल्ट मिलते हैं। सर जैसे आपने महादशा में, उनकी महादशा में, उनकी हाँ जी, अंतर्दशा में, जैसे आपने कहा कि द रिजल्ट्स ऑफ दीज योगास, विपरीत राज योगास आर नॉट सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसमें लेकिन फिर आपने कहा कि जो इनके नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो वो भी थोड़े टाइम के लिए ही खत्म होते हैं क्या? जब तक नहीं, वो तो हाँ नेचुरली जब रिजल्ट तो उसके उसी टाइम मिलेंगे, तो उसी टाइम खत्म होंगे। जब ये योग ऑपरेट होगा तो उस टाइम उसके सिग्निफिकेशंस खत्म होंगे, और जब वो नहीं रहेगा उसका इफेक्ट तो वो भी, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा उतना जो। ओके, नो क्वेश्चन, नो अदर क्वेश्चन।
सर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन सर। जी सर, किसी एक हॉरोस्कोप में 11th हाउस में कई सारे प्लैनेट्स एक साथ बैठे हैं, राहु, मरकरी, सन और मार्स, सब 11th हाउस में है, और उसका लगन का स्वामी शनि है और सैटर्न उसके 12th हाउस में बैठा है। और हाँ, और सन मून भी अकेला बैठा है 2nd हाउस में। तो एक तो वो केमधूम योग बना दिया क्योंकि उसके 1st में और 3rd में कोई भी नहीं है प्लेनेट। ठीक है। जुपिटर उसके 7th हाउस में हो गया, मैरिज वाले घर में। ये किसी लड़के की जन्म पत्री है, तो ये चीजें क्या उसका मतलब मैरिज को खराब कर रही हैं या उसके मतलब होम कंफर्ट को क्या चीज डिस्टर्ब हो रही है सर इन सब? नेचुरली जुपिटर इन द 7th हाउस इज बैड फॉर द मैरिज, और मून की पोजीशन आपने कहा कि केमद्रुम योग बन रहा है, तो इट्स नॉट अ गुड पोजीशन ऑफ मून। और जो आपने कहा 11th हाउस में सारे प्लैनेट्स हैं, यू हैव टू सी कि वो सन के कितने नजदीक है, कंबस्ट वगैरह तो नहीं है। अगर कंबस्ट हैं तो नेचुरली और ज्यादा खराब हो जाएंगे। कंबस्ट तो नहीं है, बट सन की डिग्री 26 है और बाकी सबकी कम है। हाँ, अगर कंबस्ट नहीं है फिर तो ठीक है, बट अगर कंबस्ट है तब प्रॉब्लम होती है। कंबस्ट तो एक भी नहीं है। हाँ, फिर इतना खराब नहीं है, बट इससे नेगेटिव, क्योंकि मून एंड जुपिटर, और दोनों ही जो है, जुपिटर आपने कहा किस हाउस में बताया आपने? 2nd हाउस में। जुपिटर इज इन 7th हाउस एंड मून मून इज इन 2nd हाउस। अच्छा, ठीक है। And the Lagan Lord is Saturn and it is situated in 12th house. Lagan Lord in the 12th house is really a bad position. हाँ, actually. तो ये तो कहा गया हमारी ज्योतिष की किताबों में कि अगर लग्न का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाता है तो एक राजा भी भिखारी हो जाता है, रंक बन जाता है। नहीं, इनको एक्चुअली माइंड रिलेटेड स्ट्रेस काफी ज्यादा है, स्ट्रेस, डायलिमा, जैसे आपने बताया अभी, मूड स्विंग्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आपने जैसे बताया था कि राजयोग होगा तो मींस जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन जैसे ऑफिस से बार बार कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी, ऑफिस में मन ना लगना, उस टाइप की सिचुएशंस है। राजयोग तो हाँ जी, मून का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है ना, मून के साथ जब तक वो एक्टिवेट नहीं होता मून, तो प्रॉब्लम आती है। राजयोग तो हो गया क्योंकि वीनस आ गया इनका 10th हाउस में, प्रोफेसर में आ गया। तो this is not a good horoscope. Yeah, it's not a good horoscope. Okay. अगर किसी के हॉरोस्कोप में रेमेडी वगैरह कुछ तो होता होगा, जैसे किसी का है तो वो अब हमें पता भी लग गया, डायग्नोज तो हमने कर लिया, तो उनको कुछ ट्रीटमेंट देंगे, क्या करेंगे सर? रेमेडी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, देन यू विल सी व्हाट रेमेडीज कैन हैव द इफेक्ट एक्चुअली। ओके, फाइन सर। अंकल, एक क्वेश्चन है कि if it is a Libra ascendant, Libra ascendant में अगर देखें जो डिग्रीज हैं जुपिटर एंड राहु की, they are both in Sagittarius at 23 degrees and 23 degrees something, so they're very close. Both are very close. They are very close, but Rahu shows combust in the horoscope. They are very close, but they're also sort of weak, right? Because 23 degrees pe to the planets have lost, they're not that strong, correct? For an odd sign person. तो इसमें इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी फिर? नहीं, योग तो है, बट यू हैव टू सी कि जैसे हमने कहा कि बहुत सारे केसेस में नलिफाई हो जाता है, तो उसमें आप देखिए कि जो कंडीशन कोई मीट तो नहीं हो रही नलिफाई करने वाली, तो अगर वो मीट हो रही है फिर उसमें हो सकता है कि उसका नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.